we are going to start our first session of Srila Prabhupada Memorial Festival. Srila Prabhupada Memorial Festival ki jai. So now we are going to hear from His Holiness Bhakti Gauram Narayan Swami Maharaj. Before that, there is a short presentation by Bhakti Charu Swami Media, what different activities they are doing. So I will request quickly Rishvan and Prabhu to share the short presentation on Bhakti Charu Swami Media services. Hare Krishna. So we welcome all the devotees in today's session, the morning session, and we're starting the day with a media presentation. His Holiness Bhakti Charu Swami Media. Guru Maharaj gave the name of this department as Veda Foundation, and Guru Maharaj started the shooting of Abhay Charan long back, and that's when Guru Maharaj started this Veda Foundation project. And going forward, we are trying to take care of we are trying to take care of the Iskcon Ujjain media and Guru Maharaj's media, Srimad Bhakti Charan Swami Maharaj's media, and broadcasting of our DTs the 24/7, and trying our best to maintain the websites and regularly updating the social media of Iskcon Ujjain and Bhakti Charan Swami Maharaj. Next. So last year, as you all know, that we received the YouTube silver button when Srimad Guru Maharaj's YouTube channel crossed 1 million subscribers. And last year also we launched the PCS Archives website. And following that, Abhay Charan, Guru Maharaj released this Abhay Charan a long time back. Now the devotees are working on upgrading this Abhay Charan whole serial. Now it is already released in different languages. We are also continuing the process to complete the Bengali translation, which we hope that it should be covered by next year. And we are trying to manage Guru Maharaj's social media on Facebook, Instagram, and YouTube, and regularly having Guru Maharaj's Sangha. Every Thursday morning 8 a.m. we have English Srimad Bhagavatam class by Guru Maharaj, and Sunday we have Hindi class. And yes, whatever data we have, we are trying to secure it because many generations who will come need this data. So yeah, we're trying our best to secure it and preserve it. Next. So this is the silver button which we received last year. Next. So this is the website bhakticharuswamiarchives.com. Devotees who want to hear the lectures of Guru Maharaj, they can visit this website. They have the transcriptions and MP3 audios available there. We are trying to update it regularly. Next. Abhay Charan, we have this special website for Guru Maharaj's Abhay Charan project. Abhay Charan, also we released it in the pendrive format, which is available downstairs in the pandal. Everyone can buy that, take that, and they can it is just plug and play. You can put it in your TV and it will play. Next. So these are the social platforms of Guru Maharaj we are trying to manage. On Facebook, on Guru Maharaj's page, we have 274,000 followers. On Facebook, that was Facebook, and on YouTube is 1.33 lakhs. And recently, just a couple of days back, we reached 25,000 followers on Instagram as well. Next. We are having the weekly remembrance session every Sunday at 4 p.m. Apart from the classes of Guru Maharaj, different disciples of Srimad Bhakti Charan Swami Guru Maharaj are sharing their pastimes, their time with Guru Maharaj. So devotees can go at the official website bhakticharuswami.com and get the details from there if they want to join. Next. So yeah, these are the 3 sessions in English, Hindi and Bengali which we are discussing about. Next. Archiving and securing the data.
So we are trying to collect the data from the devotees all over the world. So many senior disciples are there who have the data. So somehow or the other, we are trying to contact them before this data gets completely corrupted. We are trying to digitalize it. Like recently, we received around 400 videos, but they are in TV tapes. But that technology is completely finished. So now we are trying to digitalize it. The DV tapes now we are trying to make it more handy, which will be able to see in the laptops or computer screens. Also, recently we received Radha Vinod Prabhu just day before yesterday. He gave the audio tapes of Guru Maharaj. Now we are still trying to figure out how to digitalize that because it is very old technology. So yes, we have to work upon that as well and previous collecting the previous data. Now we are also having this Excel sheet where we are tagging and everything, like if someone wants Guru Maharaj's videos or lectures on cows, let's say on Ujjain, let's say T-land. So we have different tags in there. Devotees are hearing the lectures, taking out the tags, and we are putting it there so that if someone wants to play or hear some specific lecture, we can work over that. Next. So current services, as we have discussed, that we are launching regularly. Regularly, we are launching Guru Maharaj's video weekly. Every Saturday, we are launching a video of around 4 to 5 minutes, adding, making it more publicized by adding the B rolls and music to it. And every day, there's a short video, less than 1 minute, kind of instruction from Guru Maharaj we hear, so that we can properly project our consciousness. And yes, there are thousands and thousands of photos of Guru Maharaj available, so we are trying to centralize it. Recently, we have this Google Photos, so we put all the data into the Google Photos, and Google's AI is now trying to categorize the photos on the basis of the faces. So more than 20 or 25,000 photographs we have categorized already, and will soon will be available on a public platform so that everyone can access it. Yeah, also we launched the audio box, like we have the Srila Prabhupada audio box. Similarly, we have the Srimad Bhakti Charu Swami Maharaj's audio box, which is available with a booklet. You can just see, in Bengali, Hindi, and English, three languages. So whichever language you want, you can just hear. You have the booklet. Just see the number. Let's say we have to play the Mangala Charan 25. You just put 25 in there, and the Mangala Charan will be played like that. This is just similar as Prabhupada's tape. And next, Abhay Charan video enhancement. Yes, as we discussed about, it is almost costing more than 1.5 lakh to enhance the quality. It was earlier in the 4:3 ratio form, and because the technology was also plasma technology, TV screen पे देखते थे हम. So now we are trying to put it more into 16:9 ratio, जो हमारे laptop की screen होती है उसके अंदर. So yes, devotees and the our editors are working round the clock to finish it as soon as possible. Next. So these are some of the how we are arranging the photographs. If we just write it over there, Bhakti Charu Swami smile. So it will show all the photographs where Guru Maharaj is smiling. Bhakti Charu Swami umbrella. तो जहाँ पे भी umbrella use होगी Guru Maharaj के साथ में, it will categorize all the photos like that. Next. This is the our YouTube channel. Next. Online drive storage. Yes, so we are already having the 2 TB online drive storage where we are putting all the data, because keeping it offline in a server is still risky, but putting it into cloud is a more feasible method, and more it is easily accessible for the devotees. So now we are moving it more towards the cloud. We have already uploaded 2 TB, but we have already around 20 or 25 TB of data which needs to be sorted and uploaded. Next. Upcoming services which will trying to will be there on bhakticharuswami.com. So we have started working upon it. It may take some time, but yes, it will be finished soon. And renovation of the office. Next. Hare Krishna. Thank you so much for your patience hearing. And please forgive me for my shortcomings. Hare Krishna.
Hare Krishna. Thank you very much, Rishmanand Bro, for sharing this presentation on BCS Media, what different activities we are doing in Bhakti Charu Swami Media. Now it's a time to invite His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj. Haribo! So we request Maharaj to kindly come and share Prabhupada Katha. Yesterday Maharaj was sharing Prabhupada's journey and Maharaj will continue that. So till Maharaj is coming, I would just like to share few points regarding Maharaj. His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj appeared in Jagannath Puri in 1953 and he joined Iskcon in very just 4 years after Srila Prabhupada departure in 1981. Maharaj joined Iskcon and since then Maharaj is very actively contributing in various services. Maharaj got initiation from His Holiness Tamal Krishna Maharaj. And in 2003, Maharaj took sannyas, and from 2007, Maharaj is initiating a spiritual master. So we are very fortunate to have Maharaj, and Maharaj will be sharing Prabhupada Katha. So let us welcome Maharaj by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Just leave it. This is correct words. Is it okay? I think late or something. So, yeah, quarter to 11. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने, नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, श्रील प्रभुपाद किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना और कृष्ण चेतना आंदोलन के प्रचार के लिए स्वयं वृंदावन धाम में प्रस्तुत हो रहे थे, उसके संबंध में हम कल श्रवण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो उस समय उन्होंने एक दिन रात में एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उनके श्री गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आए और जब वो स्वप्न में आए तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आध्यात्मिक जगत से अवतरण कर रहे थे, नीचे आ रहे थे और चारों ओर जैसे आलोकित हो रहा था। तो जब वो आए श्री प्रभुपाद को उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि मेरे साथ आओ, और बाद में श्री प्रभुपाद से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि तुम्हें यदि प्रचार करना है तो तुम्हें संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता है, और तुम्हारे लिए संन्यास ग्रहण करने की जो बाधाएं हैं वो अब दूर हो चुकी है, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने के लिए सबसे बड़ी बाधा परिवार होता है। तो परिवार से श्री प्रभुपाद मुक्त हो चुके थे और वानप्रस्थ के रूप में वृंदावन में निवास कर रहे थे। तो इसलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया कि तुम्हारी समस्त बाधा दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हें संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने जब स्वप्न में ये आदेश उनको मिला तो वो सोच रहे थे कि स्वयं गुरु महाराज मुझे आदेश दे रहे हैं और प्रचार करने के लिए ये संन्यास आवश्यक है। तो उन्होंने अपने गुरु भ्राता केशव महाराज से बात की। केशव महाराज मथुरा के जो गौड़िया मठ है, उस गौड़िया मठ में रहते थे उस समय। तो केशव महाराज ने भी कहा श्रील प्रभुपाद से कि अभय बाबू आपको संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि प्रचार करने के लिए यह आवश्यक है कि सन्यासी लोगों को सभी लोग सुनते हैं, इसलिए आप अवश्य संन्यास लीजिए और गुरु महाराज का यही भी आदेश है। तो अंत में श्रील प्रभुपाद ने निश्चय किया कि वह संन्यास ग्रहण करेंगे, क्योंकि विदेश में यदि वो प्रचार करने जाएंगे तो इसलिए आवश्यक है कि बहुत सारे भारतीय सन्यासी साधु जाते हैं विदेश में
किंतु कृष्ण चेतना के प्रचार के स्थान पर कोई योग का प्रचार करता है, कोई अपने अपने अलग धर्म का प्रचार करता है। किंतु वैष्णव धर्म का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए कोई सन्यासी विदेश में नहीं गया है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो भी सन्यासीगण गए थे लंदन में, वो इतना सफल नहीं हो सके। तो श्रील प्रभुपाद ने यह निश्चय किया कि वो सन्यास ग्रहण करेंगे, और मथुरा में उनका सन्यास हुआ और केशव महाराज ने उनको सन्यास दीक्षा दी। तो सन्यास दीक्षा के बाद उनका नाम हुआ अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद महाराज वृंदावन से, जिस प्रकार हम कल चर्चा कर रहे थे, वो छिपीवाड़ा में रहकर श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे थे वृंदावन से आकर, और वहीं प्रिंटिंग का कार्य भी चल रहा था दिल्ली में, और वो अर्थ संग्रह कर रहे थे ग्रंथ छापने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते थे उस समय वो एक दिन गए थे मथुरा। मथुरा में एक सज्जन से उनकी भेंट हुई, एक मिस्टर अग्रवाल थे, उनसे भेंट हुई, और बातों में प्रभुपाद ने बताया, जैसे वो दूसरे लोगों को बताते थे कि हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि विदेश जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कृष्ण चेतना का प्रचार करना है, गीता भागवत का प्रचार करना है। तो अग्रवाल जी ने प्रभुपाद जी को बताया कि हमारा एक पुत्र वो पेंसिल्वेनिया में रह रहा है, अमेरिका में, और वो आपके लिए स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था कर देगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तो बहुत अच्छा है, यदि आपका पुत्र स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था कर सकता है तो आप मेरे लिए ये सेवा कीजिए। तो प्रभुपाद ने ऐसे बताया था, और उस अग्रवाल ने अपने पुत्र को बताया कि ऐसे ऐसे एक स्वामी जी वृंदावन से अमेरिका जाना चाहते हैं और हमारे सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए तुम स्पॉन्सरशिप भेजो। ऐसे अग्रवाल दूसरे साधुओं के लिए भी स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था की थी, किंतु कोई साधु जाते थे नहीं जाते थे। तो प्रभुपाद जी जब छिपीवाड़ा में दिल्ली में कुछ समय के लिए रह रहे थे, श्रीमद् भागवत के प्रिंटिंग देखने के लिए, क्योंकि उनको प्रूफ रीडिंग भी करना पड़ता था, और 2 खंड श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 2 खंड छप चुके थे, तीसरा खंड छप रहा था। तो उस समय प्रभुपाद जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से एक समाचार आया कि उनका अमेरिका जाने के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर रेडी है, क्योंकि उस अग्रवाल जी के पुत्र ने स्पॉन्सरशिप लेटर ये भेज दिया था इंडियन गवर्नमेंट को प्रभुपाद के लिए। और प्रभुपाद को जब पता चला कि उनका स्पॉन्सरशिप रेडी है, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपना पासपोर्ट और वीसा की भी व्यवस्था की। किंतु अब समस्या थी अमेरिका जाने के लिए टिकट, उनके पास कोई धन नहीं था। तो प्रभुपाद ने सोचा कि सुमति मोरारजी, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के 2य खंड प्रिंटिंग के लिए कुछ धन उपलब्ध कराए थे,
तो प्रभुपाद जी उनसे मिलने के लिए बॉम्बे गए। और जब वो गए वहां पर, तो सुमति मोरारजी का जो सेक्रेटरी थे मिस्टर चोकसी, उनसे प्रभुपाद ने कहा उनके आने का उद्देश्य। तो मिस्टर चोकसी जाकर सुमति मोरारजी को बताया कि वो स्वामी आए हैं जो श्रीमद् भागवत के प्रिंटिंग के लिए आपसे कुछ धन मांगने आए थे। वो और एक बार आए हैं और इस बार वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका जाएंगे। तो सुमति मोरारजी ने कहा कि स्वामी जी अमेरिका जाके क्या करेंगे? वो वृद्ध व्यक्ति है और अमेरिका में जाके क्या करेंगे? यहीं भारत में रहें और यहीं श्रीमद् भागवत का अनुवाद करें और प्रचार करें। तब मिस्टर चोकसी ने आकर प्रभुपाद को बताया कि सुमति मोरारजी ऐसा बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत असंतुष्ट हुए इस प्रकार के उत्तर से। फिर उन्होंने मिस्टर चोकसी को बताया कि सुमति मोरारजी को कैसे बोलना है उनको प्रभावित करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप उनको जाकर बताइए कि स्वामी जी का, गुरु महाराज का आदेश है विदेश में जाकर हमारे इस कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए, भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रचार करने के लिए, और वहां पर जो भी सुविधा असुविधाएं हैं उसको हम सहन करने के लिए प्रस्तुत हैं। आप केवल हमारे जाने की व्यवस्था कर दीजिए आपके जहाज में। क्योंकि उस समय प्रभुपाद चिंता नहीं कर सकते थे कि हवाई जहाज में जाने के लिए अमेरिका। तो सुमति मोरारजी के सिंधिया स्टीमशिप कंपनी का जो जहाज जाता था, मालवाही जहाज, तो उसमें जाने के लिए वो प्रस्तुत थे। और मालवाही जहाज ये 1-2 दिन में, आजकल तो 24 घंटे में, 18 घंटे में पहुंच जाते हैं अमेरिका। तो उस समय प्रभुपाद जी को 35 दिन लगे थे मालवाही जहाज में जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी ये कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत थे, अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए और सारे जगत के लोगों को कृष्ण चेतना प्रदान करके इस भौतिक जगत के दुख से उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी हर तरह का कष्ट स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत थे। वस्तुतः यही प्रभुपाद का जीवन है, त्यागमय जीवन, जो अपने सुख का त्याग जगत के कल्याण के लिए कर सकते थे। तो जब द्वितीय बार चोकसी साहब गए सुमति मोरारजी से मिलने के लिए, और जैसे प्रभुपाद ने बताया था उस प्रकार बताया, तो सुमति मोरारजी ने कहा कि नहीं नहीं, स्वामी जी वहां जाएंगे इस अवस्था में तो स्वामी जी वहां का ठंड सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए स्वामी जी को वहां नहीं जाना चाहिए। तो मिस्टर चोकसी आकर दूसरी बार प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि सुमति मोरारजी ऐसा बोल रहे। तो प्रभुपाद जी और भी असंतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने देखा कि ये चोकसी सुमति मोरारजी को अच्छी तरह समझा नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि आप सुमति मोरारजी से बताइए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो इस बार चोकसी गए और सुमति मोरारजी से बोले कि स्वामी जी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। जब सुमति मोरारजी ने हाँ कहा तो प्रभुपाद जी गए उनसे मिलने के लिए। तो जब प्रभुपाद जी मिले सुमति मोरारजी से, और सुमति मोरारजी ने ऐसी आशंका व्यक्त की प्रभुपाद के सामने कि वहां बहुत ठंड है
और इस अवस्था में आप वहाँ का ठंड सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप भारत में रहिए, यहीं प्रचार कीजिए। किंतु प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, हम भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरशील है। हमारा जीवन कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित है और इस कार्य के लिए अलग से मेरे गुरु महाराज का आदेश भी है। इसलिए यदि अमेरिका में मेरा प्राण चला भी जाए, फिर भी मैं प्रस्तुत हूँ अमेरिका में जाकर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से इस कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए। आप दया करके आपके जहाज में हमारे जाने की व्यवस्था कर दीजिए, इसके लिए मैं आपके प्रति चिर कृतज्ञ रहूंगा। तो जब श्रीमती मोरारजी ने देखा कि प्रभुपाद जी ऐसे मानने वाले नहीं हैं, तो अंत में वो राजी हो गई और चौकसी को बुलाकर कहा कि स्वामी जी के लिए हमारे जलदूत जहाज जो कलकत्ता से अगस्त 13 तारीख को जाने वाला है अमेरिका, उसमें स्वामी जी के लिए जाने की व्यवस्था कर दो। तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए कि अब अमेरिका जाने की व्यवस्था उनकी हो गई है। किंतु प्रभुपाद जी के पास अमेरिका जाने के लिए और वहां के ठंड को सहन करने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। तो चौकसी साहब प्रभुपाद जी को स्वयं लेकर बम्बे में ये मार्केटिंग करने गए। प्रभुपाद के लिए जो भी कोट चाहिए, जैकेट चाहिए, शीत वस्त्र चाहिए, ये सब खरीदा प्रभुपाद के लिए। और उसके साथ साथ प्रभुपाद ने उनसे कहा कि हमारी 3 पुस्तकें छप चुकी हैं श्रीमद् भागवत के 3 खंड, और हमारे साथ ये पुस्तकें भी अमेरिका जाएंगी। और ये 200 सेट थे श्रीमद् भागवत के 3 खंड के जो पुस्तक हैं, ये 200 सेट के थे और इस बक्से में लोडिंग करके जहाज में जाना था। तो चौकसी साहब ने वो उसकी व्यवस्था भी कर दी और प्रभुपाद ने कहा कि हमें एक पैम्पलेट बनाना चाहिए जिसको हम फ्री में वितरित कर सके सभी को। तो 500 कॉपी पैम्पलेट की भी छपी, जिसमें श्रीमद् भागवत का एडवर्टाइजमेंट था और लोगों को कृष्ण चेतना ग्रहण करने के लिए आह्वान था लोगों के लिए। तो इस प्रकार जब सब रेडी हो गया, प्रभुपाद जी फिर बम्बे से ट्रेन से गए कोलकाता, और कोलकाता में उनका जन्म हुआ था और उनका घर भी कोलकाता में है। किंतु संन्यास लेने के बाद अब जब कलकत्ता गए, उनके रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। वो अपने घर में नहीं जा सकते थे सन्यासी होने के नाते। तो उनके कोई अल्प परिचित, उतना परिचित नहीं थे, कोई बंधु थे, तो उनके घर पर जाकर पहुंचे प्रभुपाद जी। उनके घर पर रुके और अमेरिका जाने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले प्रभुपाद जी ने सोचा कि वो मायापुर जाएं, अपने गुरु महाराज जी के समाधि में गुरु महाराज की अनुमति प्राप्त करें इस यात्रा के लिए। तो वो मायापुर गए और श्रील भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर की समाधि पर जाकर प्रणाम किया और उनसे अनुमति की प्रार्थना की। उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद जी शांतिपुर भी गए थे। जब लौट रहे थे कलकत्ता, शांतिपुर में जाकर अद्वैत आचार्य जी का जो स्थान है, वहां पर जाकर भी
श्री अद्वैत आचार्य से भी प्रार्थना की थी, क्योंकि श्री अद्वैत आचार्य जो संसार के लोगों को कृष्ण भक्ति विहीन देखकर जो सदा सर्वदा चिंतित रहते थे, और उनकी प्रार्थना से ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी हुआ था जगत के कल्याण के लिए। तो अब श्रील प्रभुपाद श्री अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने सारे भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया नाम संकीर्तन के माध्यम से। अब जो संसार का दूसरा भाग बाकी रह गया था और चैतन्य महाप्रभु की उसके लिए भविष्यवाणी भी थी, अब उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने श्री अद्वैत आचार्य की कृपा की प्रार्थना की और इस प्रकार वो कलकत्ता लौट आए। और जिस दिन उनको जलदूत में यात्रा करने प्रारंभ करनी थी, उस दिन वो कलकत्ता बंदरगाह पर आए और उन्होंने दूर से देखा एक छोटा काले रंग का जहाज जो अमेरिका के लिए प्रस्तुत हो रहा है। तो प्रभुपाद जी उस जहाज में चढ़े और उनके हाथ में एक बक्सा था और एक छाता दाहिने हाथ में। ये फोटो हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी का, जिस समय वो जल यात्रा प्रारंभ की थी। तो पहले दिन प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में कि पहला दिन तो अच्छी तरह बीत गया, कोई समस्या नहीं थी और उनको कलकत्ता से श्रीलंका जाना था, श्रीलंका बंदरगाह पर, वहां से पुनः कोचिन बंदरगाह पर आना था। तो दूसरे दिन से प्रभुपाद को जिसको बोलते हैं सी सिकनेस, सामुद्रिक ये जो पीड़ा है, ये प्रारंभ हो गई। सर दर्द करने लगा, चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगी और कोई खाने का आग्रह नहीं रहा। इस प्रकार प्रभुपाद का शरीर अस्वस्थ हो गया। दूसरे दिन से जब जहाज जाकर श्रीलंका बंदरगाह पर पहुंचे और जहाज का कैप्टन मिस्टर पंडा थे, जिनको सुमति मुखर्जी ने बोल करके रखा था, क्योंकि उस जहाज में एक कैबिन थी यात्री के लिए, यात्री कैबिन प्रभुपाद जी के लिए वहीं उसी यात्री कैबिन में व्यवस्था थी। और सुमति मुखर्जी ने पांडे से कहा था कि प्रभुपाद के लिए रास्ते में जो भी भोजन की व्यवस्था है, शाकाहारी भोजन की व्यवस्था है, उनको करना है। उसके लिए जो आवश्यक है वस्तुएं, उसको पर्याप्त रूप में रखना है। तो प्रभुपाद जी जब वहां पर पहुंचे श्रीलंका में, तो मिस्टर पांड्या ने प्रभुपाद जी को साथ लिया और श्रीलंका भ्रमण करने के लिए उनको ले गए। और वो सोच रहे थे कि स्वामी जी थोड़ा बाहर घूम आएंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो श्रीलंका पांड्या जी के साथ, कैप्टन के साथ वो जाकर घूम आए और पुनः जहाज को कोचिन बंदर में आना था। और कोचिन से प्रभुपाद का जो श्रीमद् भागवत का सेट सब बक्से में बंद थे, 200 सेट, ये सब लोडिंग होना था जहाज में। तो बम्बई से वो कोचिन आया था और वहीं से जलदूत में लोडिंग होना था। तो उस समय रास्ते में
जन्माष्टमी का अवसर आया तो प्रभुपाद जब श्रीलंका से कोचिन आ रहे थे, जहाज में ही उन्होंने जन्माष्टमी उत्सव का पालन किया। तो जहाज के कर्मचारियों को उन्होंने बुलाया और भगवान कृष्ण के ऊपर उन्होंने बताया, जहाज के कर्मचारियों को। स्वयं प्रभुपाद जी ने प्रसाद बनाया और सारे जहाज के कर्मचारियों को कृष्ण प्रसाद भी वितरित किया। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद का जन्माष्टमी उत्सव जहाज में ही बना। और दूसरे दिन प्रभुपाद की जन्मतिथि, आविर्भाव दिवस था। तो ये आविर्भाव दिवस प्रभुपाद अकेले ही ये आविर्भाव दिवस मना रहे थे जहाज में, वहां मनाने वाले कोई नहीं थे। तो पुनः जब जहाज कोचिन से प्रभुपाद के ग्रंथ जहाज में वो बक्सा सब सड़ गए, उसके बाद जहाज चला तो प्रभुपाद पुनः उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, पुनः अस्वस्थ हो गए और फिर वही चक्कर आना, उल्टी आना, ये सब शुरू हो गया। और ये 2-4 दिन तक चला। उसी के बीच उनका दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हो गया 2 बार उसी जहाज में, उसी अवस्था में। तो प्रभुपाद ने सोचा कि यदि तीसरी बार दिल का दौरा पड़ता है तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। तो प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं आपका ही काम करने जा रहा हूं, आपका ही प्रचार करने जा रहा हूं और आपके इस काम के लिए मैं पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हूं। यदि आप चाहें तो मैं अमेरिका में पहुंचकर आपके इस गीता भागवत की वाणी का प्रचार कर सकूं। नहीं तो आप यदि चाहते हैं यहीं पर सलील समाधि हमारे हो जाए तो जैसे आपकी इच्छा है, हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। तो उसी रात प्रभुपाद ने एक स्वप्न देखा। तो उसी स्वप्न में प्रभुपाद देख रहे हैं कि वो एक नौका में बैठे हुए हैं और उस नौका को स्वयं भगवान कृष्ण चला रहे हैं। तो इस स्वप्न को देखकर प्रभुपाद जी निश्चित हो गए कि अब उनका कुछ नहीं होने वाला है। अब वो स्थिर निश्चित हैं कि वो स्वस्थ रहकर अमेरिका में पहुंचेंगे और भगवान की वाणी का प्रचार करेंगे। क्योंकि जिस नाव के नाविक स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उस व्यक्ति को और किसका डर है, भय। प्रभुपाद समझ गए कि उनके जहाज का अब कर्णधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद प्रभुपाद जी स्वस्थ हो गए और फिर दिल का दौरा नहीं पड़ा। और जब जहाज अटलांटिक महासागर में पहुंचा, ये अटलांटिक महासागर हर बार जहाज जाते समय वहां वृष्टि, तूफानें ये सब चलती रहती। तो ये समुद्र में ये सब स्वाभाविक है, और विशेष रूप से अटलांटिक महासागर। किंतु इस बार प्रभुपाद जी जा रहे थे तो अटलांटिक महासागर पूर्ण शांत रहा। उनके जितने दिन तक लगा अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए, तो अटलांटिक महासागर पूर्ण शांत रहा प्रभुपाद की जल यात्रा में। तो जहाज के कैप्टन पांड्या की पत्नी ने प्रभुपाद से अनुरोध किया कि स्वामी जी,
आप इस बार हमारे साथ चल रहे हैं, इसलिए अटलांटिक महासागर शांत है, और लौटते समय आप भी हमारे साथ आइए, जैसे अटलांटिक महासागर शांत रहेगा। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जाकर पहुंचे 35 दिन के बाद। अमेरिका में पहले बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचे, और वहां पर जैसे कस्टम्स का रीति रिवाज है उसका सामना किया, और पांड्या जी के साथ वो बोस्टन नगर भ्रमण में भी गए, और पहली बार उन्होंने अमेरिका में अपना पैर रखा, और अमेरिका में लोगों की रहन सहन शैली और वहाँ का वातावरण का अनुभव किया। और जब लौटकर आए जहाज में, तो उन्होंने एक कविता लिखी, मार्की ने भागवत धर्म। उसी दिन लिखा प्रभुपाद ने ये कविता लिखी थी। तो उसके बाद ये जहाज गया न्यूयॉर्क बंदरगाह पर। तो न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जब पहुंचे, तो प्रभुपाद जी जहाज से निकले, और जब जहाज से निकलते हैं बाहर, तो वो कहां पर जाएंगे उनको पता नहीं है। वो बाईं ओर जाएंगे या दाहिनी ओर जाएंगे पता नहीं है। वो संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील थे। तो इस कार्य में जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भरशील होता है, भगवान कृष्ण स्वयं उसकी व्यवस्था करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि पूर्ण समर्पण, हम उनके चरणों में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दें, तो भगवान हमारा दायित्व वहन करते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां ये अना परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान ये प्रतिज्ञा करते हैं भगवत गीता में, जो अनन्य रूप से, न अन्य अनन्य, अनन्य रूप से जो मेरा ही चिंतन करता है, मेरी ही उपासना करता है, मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता, इस प्रकार नित्य मेरे साथ युक्त होने वाले का योगक्षेम में वहन करता हूं। तो जो प्रभुपाद जी बाहर निकलते हैं, एक टूरिस्ट गाइड उनको मिलता है, और ये टूरिस्ट गाइड, ये जो अग्रवाल जी ने स्पॉन्सरशिप लेटर दिया था बोस्टन का, पेंसिल्वेनिया में जो रहते थे बटलर में, उन्होंने ये टूरिस्ट गाइड की व्यवस्था की थी कि प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क से बटलर लेने के लिए। तो वो टूरिस्ट गाइड आया और प्रभुपाद जी से मिला, मिलकर उनको बस स्टैंड ले गए, और बस में बटलर जाने की व्यवस्था भी कर दी। हाँ, बीच में जब प्रभुपाद जी जा रहे थे जहाज में, उस समय हम लोग सभी जानते हैं कि उनके पास 40 रुपए थे, और भारतीय पैसे का, रुपए का कोई मूल्य नहीं है अमेरिका में, और 40 रुपया क्या होता है। तो प्रभुपाद जी ने जहाज में जहाज के कैप्टन को अपने भागवत सेट, एक सेट उन्होंने बिक्री किया था। तो उन्होंने कैप्टन से कहा था कि आप यदि चाहें तो हमारे एक भागवत सेट ले सकते हैं मूल्य देकर। तो जहाज का कैप्टन पांड्या ने पूछा कि आपके इस सेट का क्या मूल्य है। तो प्रभुपाद ने कहा कि $16। तो कैप्टन पांड्या ने $20 दिए प्रभुपाद जी। तो ये $20 ही प्रभुपाद के पास थे उस समय।
और ये 40 रुपये अजबे। तो वो जाकर बटलर में रात्रि काल में पहुंचे। वो जो अग्रवाल जी के पुत्र थे उनके घर पर, गोपाल अग्रवाल उनका नाम था। तो वो बटलर में एक ग्रामीण इलाके में रहते थे। तो जब प्रभुपाद जी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर भी उतना बड़ा नहीं था। तो उनके बाहरी जो ड्राइंग रूम था छोटा सा, वहीं पर एक चारपाई पड़ी थी। तो गोपाल ने कहा कि प्रभुपाद जी को वहीं सोने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने विश्राम किया और उनके घर पर अतिथि के रूप में रहने लगे और अपना प्रसाद स्वयं बनाते थे प्रभुपाद जी। वो पहले अमेरिका जाने से पहले सोचते थे कि अमेरिका में शाकाहारी भोजन की सामग्रियां उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए प्रभुपाद जी सब साथ में लेकर गए थे भारत से। किंतु उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ उपलब्ध है, तो गोपाल अग्रवाल सब ला के देते थे। तो गोपाल ने सोचा कि प्रभुपाद जी YMCA में एक कमरा लेकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो रात में वहां रहेंगे और दिन में उनके घर पर आ जाएंगे। तो प्रभुपाद जी अपने लिए तो रसोई करके कुछ कुछ देते थे गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली अग्रवाल, उनको कुछ प्रसाद देते थे और उनको अच्छा लगता था प्रसाद। तो बाद में उन लोगों ने प्रभुपाद को सभी के लिए प्रसाद बनाने के लिए कहा। तो प्रभुपाद जी ने सभी के लिए प्रसाद बनाया कुछ समय तक। तो गोपाल अग्रवाल ने वहां पर YMCA में एक प्रभुपाद के लिए प्रोग्राम की व्यवस्था की, और उनके घर पर जब रहते थे तो गोपाल अग्रवाल के जितने जाने पहचाने लोग थे उनको वो बुलाते थे स्वामी जी से मिलने के लिए। प्रभुपाद जी उनसे सब मिलते थे और उनसे बात करते थे भगवान के ऊपर, गीता भागवत के ऊपर, ये सब बात करते थे। और ये लोग सब प्रभावित होते थे प्रभुपाद जी के कथन से। जब YMCA में प्रभुपाद ने पहला प्रवचन दिया अमेरिका में, तो दूसरे दिन ये न्यूज़पेपर में आया, प्रभुपाद का नाम, कोई भारतीय स्वामी जी आए हुए हैं फोटो के साथ, और ये वैदिक संस्कृति का प्रचार अमेरिका में करने आए हैं, और भगवान को, भगवान कौन है इसको ये अच्छी तरह स्थापित कर रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद की प्रशंसा में ये लेख निकला था, जिससे कि बहुत सारे लोग जान गए कि कोई स्वामी आए हुए हैं गोपाल अग्रवाल के घर पर। तो बहुत सारे लोग आए प्रभुपाद से मिलने के लिए। किंतु प्रभुपाद ने सोचा कि केवल प्रवचन देने से और कुछ लोगों से मिलने से हम जिस कार्य के लिए आए हैं इस कार्य में हम सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक हमारा अपना कोई स्थान नहीं है तब तक लोगों के साथ हमारा संबंध उस प्रकार स्थापित नहीं होगा जिस प्रकार हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर लोग चले जाते हैं। तो उस प्रकार का संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, नाम तो हम उनको बदल पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने सोचा कि अब मुझे दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। तो एक न्यूयॉर्क में राममूर्ति मिश्र थे, योग गुरु थे, ये इंडिया से गए हुए थे। उनके साथ बॉम्बे से
प्रभुपाद का परिचय हुआ था, तो उन्होंने उनको फोन किया और उनके पास आने के लिए उन्होंने इच्छा व्यक्त की। तो राममूर्ति मिश्र ने, डॉक्टर राममूर्ति मिश्र ने कहा कि हाँ ठीक है, आप आ सकते हैं। तो प्रभुपाद बटलर से न्यूयॉर्क जाने के लिए प्रस्तुत हुए। तो अब न्यूयॉर्क में प्रभुपाद ने फिर आगे इस कृष्ण चेतना आंदोलन को बढ़ाया। ये तो बहुत लंबी कहानी है। और अब वासुदेव प्रभु जी यहाँ पर बैठे हैं, अब हम उनसे कुछ श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी के बारे में। हम यहीं प्रभुपाद जी की कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की। His Holiness Bhakti Gaurav Narayan Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for sharing wonderful Srila Prabhupada pastime, that how Srila Prabhupada made a perfect strategy for preaching in the West. Though initially he prepared himself by writing books, and through that books he started his preaching work. When he went to West, he took that books and making the books as a platform, as the basis, he started preaching. Thank you very much, Maharaj. So I would like to invite next His Grace Bashu Ghosh Prabhu for speaking Srila Prabhupada Katha, to continue Srila Prabhupada Katha. Chair again. He will do one mantra together. Okay. I don't want to sit in that big asana. Charan? Is this that cordless mic? Let sannyasi sit there. Om. Arabhyate. Om Brahman Brahmano Brahmavachasi Jayatamashtre Rajanya Shura Ishavyotivyadhi Maharatho Jayatam Dodri Dhenur Bodhanadvanashus Saptipurandir Yoshajishnur Ratheshtas Sabheyo Yuvasya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nafarjanyo Varashatu Phalavatyona Oshadhayat Pachantan Yoga Shemo
न कल्पताम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्या नामते लोकास् अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेक्ष्याभिगच्छन्ति ये चात्मनो जनाः अनेजदेकम् मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वम् अर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत् तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यः यस्तु सर्वाणि भूतानि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत् विजानतः तत्त्वको मोहः शोकश्चेकतत्त्वमनुपश्यतः सपर्यगात् शुक्रमकायमव्रणमस्नाविरम् शुद्धपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्यथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रुमध्वीराणाम् येन तद्विचक्षिरे विद्यांश्च विद्यांश्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्वा विद्ययामृतमश्नुते अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूतिम्यामृताः अन्यदेवाहुर्सम्भवान् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमध्वीराणाम् येन तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या मृतमश्नुते हिरण्मयेन
वक्त्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषणपावृणु सत्यधर्माय जिष्टये पूषन्ने कर्षेयमसूय प्रजापत्य व्यूहरश्मीन् समूहतेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषसोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमभेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॐ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभुपाद जी महाराज श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया, हम महाराज जी से सुना और अन्य पुस्तकों का अनुवाद भी किया, जैसे अभी हम ईशोपनिषद का पाठ किया। ये शुक्ल यजुर्वेद कान्व शाखा, वेदों का 1000 शाखा था। जब प्रथम स्कंद में वेद एक वर्णन है कि एक ही वेद था और व्यास ने 4 वेद बनाया और उन्होंने अपने शिष्य को और उनके शिष्य ने प्रशिष्य और प्रशिष्य, इस प्रकार से 1000 अलग अलग शाखा बन चुके थे। अभी उसमें से कुछ बचे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज ईशोपनिषद का अनुवाद और तात्पर्य का प्रकाशन किया और वितरण किया। कहने का तात्पर्य है कि वैदिक संस्कृति का प्रचार किया। भले गौड़ीय संप्रदाय श्रीमद् भागवत पर ज्यादा बल देते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये नहीं है कि वेद अध्ययन नहीं करना है। वैदिक शैक्षणिक पद्धति के बारे में जब विचार आ जाते हैं तो सभी वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना हम समझते हैं उचित है। अच्छा, हम यही कैसे समझना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन वैष्णव संप्रदाय में भी ब्राह्मणों का काम है वेदाध्ययन। मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी पंडित लोग मायापुर में बुलाया अपने ब्रह्मचारियों को शिक्षण देने के लिए दक्षिण से। स्वामी नारायण संप्रदाय में भी यही चलते हैं कि अगर पंडित
शिक्षण देने के लिए बुलाना है तो साउथ दक्षिण से बुलाते हैं। मैंने देखा कि दक्षिण भारत में अभी भी वेदाध्ययन ज्यादा चलते हैं उत्तर भारत के अपेक्षा से, और ये सब वेदाध्ययन का सहायता संस्था केंद्रीय सरकार ने कहाँ रख लिया मालूम है? उज्जैन। यहाँ है सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, और वो केंद्रीय शासन वेदाध्ययन का आर्थिक सहायता, उसी के द्वारा आर्थिक सहायता देते हैं गुरुकुलों को। प्रभुपाद गुरुकुल 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 1000 बार बोलते थे, बट गुरुकुल क्या है, उसका वर्णन कहाँ है? मैं आपको बताऊं, ये खुले हुए रहस्य है। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद लिख लो, जो नोट ले रहे हैं, बड़ी रुचिकर है। कृष्ण और बलराम यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य गर्ग मुनि कहाँ प्राप्त किया? मथुरा। और उसके पश्चात वसुदेव और देवकी ने कृष्ण और बलराम यहां भेज दिया, अवंती। और वर्णन है सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा। सांदीपनी मुनि कहाँ के थे? श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में लिखा है। कौन जवाब दे सकते? महाराज जानता होगा, ये महाराज लोग, लेकिन दूसरे आप लोग जानते हैं कहाँ के थे सांदीपनी? कोई नहीं, एक हाथ, कोई हाथ है के? बोलिए प्रभु। काशी। सांदीपनी मुनि चले आया काशी से अवंती। अच्छा, भागवत के 10वां स्कंद 45वें अध्याय 33, 34, 35 और 36वें श्लोक में क्या क्या बात किया यहां आकर। हम प्रभुपाद के बारे में, प्रभुपाद जी महाराज के जीवन, उनके जीवन का लक्ष्य था श्रीमद् भागवत का अनुवाद और प्रचार। भागवत का प्रचार किया, और भागवत में लिखा है कि कृष्ण और बलराम साक्षात ईश्वर अवतार यहां आकर वेदाध्ययन, उसमें लिखा है वेद उपनिषद अन्वीक्षिकीम, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, और चतुष्षष्टि ही कला, 64 कला, ये सब चीज वेद और वेदांग, ये सब भागवत में लिखा है कि कृष्ण और बलराम गुरुकुल आकर यही विषयों का पाठ किया। तो वैदिक संस्कृत, वैदिक शैक्षणिक पद्धति क्या है? सोचने की बात है। गुरुकुल में यही पद्धति अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और अभी भी दृष्टिगोचर है। हम लोग, मैं सोचता हूं कि उस पद्धति का पालन करना चाहिए, क्योंकि भागवत के 10वां स्कंद में है, और प्रभुपाद जी महाराज का यही शिक्षण था, पूरा दुनिया को वैदिक बनाना। अच्छा, वेद में भी एक कृण्वन्तो विश्वमार्यन्, प्रभुपाद आर्य शब्द का प्रयोग बारंबार किया। और आर्यन क्या है? श्रेष्ठ पुरुष। लेकिन आर्यन का एक और अर्थ है, वैदिक शैक्षणिक पद्धति में जो पाठ किया वो आर्यन है। हिटलर ने यही शब्द ग्रहण किया पाश्चात्य देशों में। हिटलर का नाम आपने सुना होगा। हिटलर असुर हम समझते हैं, राक्षस। उसने बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं, जनहानि किया, वध किया। और हिटलर ने कहा हम आर्यन है, लेकिन वेदाध्ययन नहीं किया। वेदाध्ययन का पद्धति उसने
जर्मनी देश में चालू नहीं किया, खाली शब्द ग्रहण किया। पर आर्यन का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी महाराज ने सिखाया पूरा विश्व को कि आर्यन वो है जो वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म का पालन करते हैं। और वैदिक संस्कृति और वैदिक धर्म का पालन क्षमा करे कैसे होगा? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने से। अभी हम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और भक्ति वेदांत जैसे उपाधि दे रहे हैं लोगों को जो अच्छी तरह वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन वैदिक ग्रंथ बहुत है। प्रभुपाद जी महाराज वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करने के लिए इच्छा प्रकट किया। उन्होंने गीता प्रेस का रामायण का अवलोकन किया और उन्होंने कहा कि और थोड़ा सा भक्तिमय भाषा अगर हो तो अच्छा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वो भाषा भक्तिमय है, मूल तो भक्तिमय ही है। इसलिए इस देश में भगवान रामचंद्र का भक्ति प्राचीन परंपरा सभी जगह में दृष्टिगोचर है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में मुरारी गुप्त, आपने कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? आप लोग सब सुन लिया। मुरारी गुप्त क्या था, कोई बता सकते मेरे को? बोलो। हाँ, नहीं, वो बात नहीं। व्यवसाय क्या था? वैद्य था। यहां आरोग्य निकेतन चलते हैं, हम वहां से आया अभी। और मुरारी गुप्त बहुत अंतरंग भक्त था चैतन्य महाप्रभु का। और प्रसिद्ध घटना है श्री चैतन्य चरितामृत में कि मुरारी गुप्त को महाप्रभु ने स्वयं कहा, गुप्त आज आप राधा कृष्ण का पूजा करो और रघुनाथ को छोड़ दो। ठीक है प्रभु, आप बोल रहे हैं, मैं करूंगा। लेकिन दूसरे दिन महाप्रभु के पास आके महाप्रभु को कहा, प्रभु मैंने आत्महत्या करने का निर्णय किया क्योंकि मैं रघुनाथ के साथ के बिना जी नहीं सकूंगा। देखो, और महाप्रभु ने क्या किया, उसका आलिंगन किया कि आपका श्रद्धा और निष्ठा क्या बोलते हैं, नहीं, एक दृष्टांत, एक आदर्श दृष्टांत है। ये बात में आदर्श दृष्टांत। भगवान रामचंद्र का उपासना खंडनीय नहीं है, प्रशंसनीय है। कहने का तात्पर्य वही है। हम लोग राधा कृष्ण का उपासना करते हैं, कोई जगह में दिल्ली और जुहू मंदिर में रामचंद्र भगवान के मूर्ति का पूजा भी करते हैं। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय राधा कृष्ण। और हम वृंदावन में, ये अभी एक प्रभुपाद का कथा मैंने यही बताया पहले, इसी समय ने, इसी उत्सव में नहीं बताया, लेकिन आप लोग ने सुना होगा कि 1974 में मायापुर के पश्चात 400 लोग आया दुनिया भर। पहले बार इतना बड़ा संख्या आया। कितना साल हो गया? 48 साल पहले, बचपन की बात है मेरा। वृंदावन में हम लोग फोगला आश्रम, आपने सुना होगा फोगला। विदेशी लोग फोगल बोलते हैं क्योंकि फोगल एक उपनाम है विदेश में। और यहाँ फोगला एक अग्रवाल समाज के बड़े धनिक ने बड़ा धर्मशाला बनाया वृंदावन में वर्षों पहले। गीता प्रेस से गीता प्रेस ही चलाते हैं। तो हम लोग वहां था
प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत का प्रवचन देते थे और सामने 24 घंटे का सीताराम 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 जय सीताराम कीर्तन चलते थे। ये सुन सुन के प्रभुपाद अपने प्रवचन में एक बार नहीं बारंबार बोलते थे, आप वृंदावन आया तो राधा कृष्ण समझने का प्रयास कीजिए। तो इसमें ये अलग अलग रसा है। जैसे अलग अलग प्रकार के सब्जी बनते हैं, कोई रुचिकर है एक ही चीज अलग, कभी सूखा कभी रसादार बनाते हैं। तो कभी कभी रामायण महाप्रभु के बाल लीला में रामायण का नाटक करते थे ना उनके मित्रों के साथ। तो कभी कभी ये रसा है, कभी कभी वो रसा है। भक्त लोग भगवान का दिव्य लीला का स्मरण और दिव्य लीला का कभी कभी नाटक रचाना चाहते हैं। प्रभुपाद ये भी प्रोत्साहन देते थे कि आप नाटक रचाओ। और प्रभुपाद जी के जीवन काल में विदेश में खास वैकुंठ नाट्य दल कि वो लोग अलग अलग कथा नाटक के रूप में प्रस्तुति करते थे प्रभुपाद जी महाराज के लिए और सामान्य जनता के लिए। कोई कोई जगह में यहाँ चलते हैं कि नहीं मालूम नहीं, इस महोत्सव में होने वाला नहीं है शायद लेकिन हमारे वहां भी गुजरात में हम लोग इतना नहीं करते हैं, मेरे को सत्य बोलना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई जगह में, दिल्ली में आजकल दिल्ली में होते हैं। 15 मिनट दिया, मालूम नहीं 15 मिनट खत्म हो गया होगा। प्रभु क्या नियम क्या पालना है बताइए। एक मिनट 15 मिनट था, 45 मिनट। अच्छा अभी क्या कितना, एक मिनट में देख सकते। अच्छा 25 मिनट बाकी है, वाह क्या बात है। संस्कृत गुरुजी कुछ बोलना चाहते हैं, फिर मैं उसके पश्चात क्या बोलूंगा। आदेश अस्त्रम विना, बोलिए। अस्त्रम विना, शस्त्रम विना, शस्त्रम विना, वित्तम विना, वित्तम विना, मित्रम विना, मित्रम विना, एको वृद्धा, एको वृद्धा, जगत 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 जितवान। जितवान। क्या कहा मैंने? बिना अस्त्र के, बिना शस्त्र के, बिना वित्त के, बिना मित्र के, केवल भक्ति के बल से एक वृद्ध ने पूरे जगत को जीत लिया। अद्भुतम अद्भुतम। और किनको बनाया? जो असामाजिक तत्व, मदिरा पाई, गांजा पाई, सड़कों पर नंगे लेटने वाले असंभव, उनको और उन पर थूकने वाले, कोई विचार भी नहीं कर सकता। अभी महाराज जी बता रहे थे, कोई विचार भी नहीं, अकल्पनीय, अचिंतनीय, स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकते। और उससे भी अधिक अपने जीवन के अंतिम क्षण तक ध्येय निष्ठा के साथ जो कर्म किया उसका फल प्रत्यक्ष भी देखा और अब हम देख रहे हैं।
जो बुद्धिमान है, जो अपने मानव देह के मूल्य को समझते हैं, वे अवश्य प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को भक्तिमय बनाते हैं। इतना सरल बना दिया, हाथ पकड़ के पकाना सिखाया, हाथ पकड़ के लिखना सिखाया, हाथ पकड़ के बैठना, उठना, तिलक लगाना, धोती पहनना सिखाया। अच्छी बेटियों को और अच्छी बेटियां कैसे बने, अच्छे बेटों को और अच्छे बेटे, अच्छे पति कैसे बने, अच्छी पत्नी कैसे बने, अच्छे माता कैसे बने, अच्छे पिता कैसे बने, एक एक बात सिखाई। खुद मैंने कहा गोलियां बना के, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, स्वीट, गुलाब जामुन स्वीट, गोले गोले नहीं बरसाए, गोलियों, मीठी गोलियों से, मीठी गोलियों से इतनी कठोर अनुशासन सिखा दिया। मीठी गोलियां देके प्रातः 4 बजे उठना सरल है। सबका सर्व, बड़े से बड़े विद्वान भ्रष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल 4, पौने 4 बजे, लोग 3 बजे उठ जाते हैं। शीतल जल से स्नान सिखाया, जो 6-6 महीने नहाते नहीं थे। आश्चर्य, कोई आडंबर नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं तो नौकर हूं। जब भी पूछते तो मैं नौकर बनने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं प्रभु की सेवक बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। कभी कहते थे मैं डाकिया हूं, शब्दों का प्रयोग देखिए, कभी कहते मैं डाकिया हूं, मैं गुरु नहीं हूं, यहां तक मैं तो सेवक हूं। लोग कहते हैं सरकारें अपनी हो तब काम होता है। कितना भ्रम है। बिना सरकार के, बड़ी सरकार के काम को करके दिखा दिया। किसी सरकार के बिना उस बड़ी सरकार, हमारे प्यारे राधा कृष्ण के उस परम पवित्र मंत्र को पूरी दुनिया में फैला दिया। यद्यपि काम बाकी है, बहुत कार्य बाकी है, करना है, किंतु साधन नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अभी बता रहे 40 रुपए, अभी बताया कितनी कितनी तीव्र बुद्धि होती है भक्त की, कि कैप्टन को भागवत जी दे दी। हरि बोल, कैप्टन को भागवत जी दिए, और फिर दिए कैसे, उसका मूल्य है, इतना है। निसंकोच निष्ठा के साथ केवल एक वचन दिया था गुरु को, अपने परम पूज्य गुरुदेव को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद को उन्होंने वचन दिया था, तो स्वयं प्रभुपाद बन गए ना। मुझे लगता है कई बार विचारम करोमि यदा, कि हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो प्रधान सेवक है, और कितना भारत का डंका बजाने का प्रयत्न करते हैं, कितनी शक्ति है उनके पास, कितने लोग हैं, कुछ करते भी हैं, अवश्य प्रयत्न करते भी हैं, किंतु आप वस्त्र भी 2 ही धोती होगी, वस्त्र भी नहीं, छोटा टेप रिकॉर्ड, टाइपराइटर साथ में था, टाइपराइटर का प्रयोग बहुत करते थे। क्या साध, हमारे पास कितने साधन है, मोबाइल देखो, अभी बोलो मंत्र वहां आ जाएगा, अभी ये सब कुछ ऑन टिप्स, टच स्क्रीन, और चट हो गए, कुछ नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है हमको। उनको उस कंठस्थ प्रवचन में कभी पुस्तक देखी नहीं, निरंतर। अतः कहते हैं कि ईश्वर का गुणगान तो करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, बार बार
गुण का, लीलाओं का, धाम का, किंतु जिन्होंने वो बताया उनका गुणगान ज्यादा करना चाहिए, ऐसा कहा है रामानुज संप्रदाय में, खास है ये सत्यम। आचार्यस्य गुणगानम कुर्यात्, अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, आचार्य का खूब गौरवगान करना चाहिए, खूब गौरवगान करना चाहिए। और भक्ति चारू जी महाराज जी ने ये परंपरा, उनका नाम भी रखा था भक्ति चारू जी। व्यास पूजा को क्या कहते थे? प्रभुपाद स्मृति महोत्सव, रूपा स्मृति महोत्सव। तो जो कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है वो मनुष्य होता है। जो कृतज्ञ नहीं है उसका उसका पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये ग्रंथों में, शास्त्रों में कहा गया है, सर्वेषां प्रायश्चित्तम अस्ति, किंतु कृतज्ञताहीन जो व्यक्ति है, और पूरा विश्व कृतज्ञ है, हम भी कृतज्ञ हैं। हम सब इस भाव को मन में प्रतिक्षण स्मरण करें और चरण धूलि के योग्य बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अंत में 4 पंक्तियां मुझे कहने की बहुत इच्छा हो रही है। भारत माता की संतानें, हम सब अपने को पहचाने। ये तो भारत में आगे बन गए भारत के, भारत, ये तो सवाए भारत कहते हैं इसको। कोई संत नहीं होगा जहां जाते नहीं होंगे। निर्भीक, निर्भय और सच्ची बात कह दें तो भारत माता की संतानें, माता की हम सब अपने को पहचाने, हमें सबको अपने पहचाने, सब अच्छे परिवार बनाएं, हम अच्छे परिवार बनाएं। ये अंतिम वाक्य याद रखना, मेरे तीसरा, चौथा आने वाला है। अपने बच्चे आप पढ़ाएं, आप पढ़ाएं, संस्कृत बोले गुरुकुल खोलें, संस्कृत बोले गुरुकुल खोले, वीर बने और भक्त बनाएं। वीर बने, भक्त वीर होते हैं। अर्जुन, हाँ, हनुमान, अर्जुन, हनुमान, वीर, वीर बने और भक्त बनाएं, और भक्त बनाए। हम सब अपने को पहचाने। बहुत बातें हैं, क्षमता, अहम क्षमाम याचे, मम तथा योग्यता नास्ति, किंतु संग का फल मिल रहा है कुछ कुछ मुझे। प्रभु करे मेरा जीवन सफल हो। आप सबके आशीर्वाद मुझे दीजिए। हम स्वमानव देह हम धन्यम कुर्याम। ओम स्वस्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समय बाकी है। कहाँ गया प्रेम अवतार? अच्छा है, 10-15 मिनट, 15। एक विचार आया मन में, हम गुरु जी का शरीर को अलौकिक समझते हैं, तो कैसे ही समझना चाहिए। मैं प्रभुपाद के साथ बैठा था हैदराबाद में। भोगीलाल पटेल प्रभुपाद से बड़े थे, बड़ा व्यापारी था, और उन्होंने अहमदाबाद में खेती है, अभी 100 एकड़ भूमि देना चाहता था और दिया, लेकिन उनका बेटा को बताया कि इस्कॉन के नाम पर रखा, और बेटा को करना चाहता था, और बहुत लंबी कथा। अभी 70 एकड़ इस्कॉन के हाथ में रहा। उसकी भोगीलाल की पोती, बेटा की बेटी, एक ही संतान थी, उसकी बेटा का एक ही बेटी थी। समाधान किया, हमको 30 एकड़ वापस दो। 1100 एकड़ बाजू में उन लोगों के है। ये हो गया। तो भोगीलाल प्रभुपाद से बड़ा आकर्षण हुआ, बहुत बड़ा सेठ जी था, और उनका एक दोस्त प्रभुपाद और मैं, हम 4 बैठा था हैदराबाद प्रभुपाद के कमरे में। तो प्रभुपाद बोल रहा था ये लोगों को कि सब बोल रहे थे
प्रभुपाद बोल रहे थे कि मेरा शरीर खत्म होते जा रहे हैं, मेरा पेट, मेरा किडनी और लिवर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे याद है मेरा। तो फिर हम कैसे समझ सकते कि गुरु का शरीर अलौकिक है? अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभुपाद स्वयं दृष्टांत देते थे कि जब लोहा अग्नि में डालते हैं तो अग्नि का गुण पकड़ लेते हैं। तो जब कोई भक्त 100% शरणागत आत्मनिवेदनम समर्पित पूर्ण रूप से जब भगवान के सेवा में समर्पित होते हैं तो उनको आध्यात्मिक हम समझते हैं, हम मानते हैं। ऐसा नहीं कि उनका शरीर भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं भगवान के सेवा में 100% संपूर्ण रूप में, फिर उनको मानना है वो अलौकिक है। क्योंकि कोई ये देख के कि गुरु जी का शरीर हमारे शरीर जैसे है तो वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि हम जैसे है गुरु जी। प्रभुपाद का एक शिष्य जो था उसी काल में हैदराबाद में, और बाद में संस्था छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे कहानी है, लोग मोहित हो जाते हैं कि गुरु एक सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति जैसे है ही, जन्म सामान्य की तरह लेते हैं, लेकिन पूर्ण रूप में शरणागत है, उसको सामान्य नहीं मानना चाहिए, ये उपदेश है। इसलिए साक्षात हरित्व शब्द का प्रयोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किया। पूर्ण रूप में लगे हुए हैं, भगवान का प्रचार प्रवृत्ति, भगवान का गुणगान। कभी भिखारी जैसे दिखते हैं। बंसीदास बाबा जी, आपने कितने लोग बंसीदास बाबा जी का नाम सुना है? उसका चित्र है, पागल की तरह दिखते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष। गौर किशोर बाबा जी भी कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। जिस स्थान में लोग मल त्याग करने के लिए जाते थे उसके निकट रहते थे। उनके शारीरिक सुख के लिए कोई इच्छा नहीं रखा। इसलिए हम समझते हैं कि ये लोग अलौकिक स्तर पर पहुंच गया। हम इस शरीर नहीं है, ये हमारा पहला गीता का पहला सिद्धांत है। शरीर का परिवर्तन होते देखो, छोटे छोटे नाने नाने बच्चे बैठा है यहाँ, और हमारे सब ऐसे शरीर था एक काल में, बचपन में। उसका याद नहीं आ रहे हैं। कोई कोई लोगों का याद रहते हैं, कोई कोई लोग। मेरा याद है जब मैं 2 साल के थे, अभी भी जरा सा याद है, संपूर्ण याद नहीं है, लेकिन जरा सा याद है। बाद में जब बच्चा 5 साल के हो, शरीर का परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन आत्मा का पहचान मैं हूं, चेतना का परिवर्तन नहीं होते हैं। तो भगवान के परम भक्तों का परिस्थिति अलौकिक हम मानते हैं। कभी कभी वो भक्त गृहस्थ है। अर्जुन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेतत् उत्तमम। उत्तम रहस्य अर्जुन सन्यासी नहीं थे।
बड़ी बड़ी विद्वान पंडित नहीं था, ब्राह्मण। लेकिन हम समझते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वैदिक काल में सब वेदाध्ययन करते थे। इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः, राजर्षयो विदुः, राजा ऋषि थे। क्यों? किसी ने उसको ऋषि नामक दंड से मारा और उसको ऋषि कहते हैं। क्यों ऋषि है? सोचने की बात है। राज परंपरा, राजा उनका एवं परंपरा शब्द का प्रयोग है। और भागवत में और सभी पुराणों में राजा को वंश और वंशानुचरित्र का वर्णन होते हैं। सब वैदिक संस्कृति में पट्टू थे। दिल्ली के बाजू में गुरुग्राम, अभी गुरुग्राम शब्द का प्रयोग फिर से चालू किया। गुड़गांव वर्षों वर्षों तक बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। जैसे हम पुराने लोग बॉम्बे और कलकत्ता बोलते हैं, अभी कोलकाता और मुंबई हो गया, हम बोल नहीं सकते, आदत हो गया। गुड़गांव, पर गुरुग्राम प्रसिद्ध क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य धनुर्वेद के साथ साथ ये भी मैंने बोलना भूल गया कि सांदीपानी मुनि उन्हीं श्लोकों में धनुर्वेद का शिक्षण भी दिया। वो केवल धनुर्वेद का शिक्षण नहीं होते थे, साथ साथ में वेद, उपनिषद इत्यादि, अन्वीक्षिकीम, 64 कला, ये सब वैदिक संस्कृत, वैदिक शैक्षिक। क्षत्रिय के लिए खास धनुर्वेद का शिक्षण, युद्ध कला। अच्छा, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य क्षत्रिय नहीं थे और दोनों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया। हम समझते हैं कृपाचार्य जीर्ण है, चिरंजीवी। कृपा, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, ये सब जी रहे हैं इस समय गुप्त रूप में। हाँ, मार्कंडेय, हाँ। तो राजा, अर्जुन ऐसे राजा था कि न केवल भक्त था, राजर्षि था, उनके यही सब गुण थे। भक्ति एक गुण है। और पूरा गीता का उपदेश क्या है? लड़ाई करो, युद्ध करो, तस्मात् त्वमुत्थः जित्वा शत्रुन युध्यस्व मदनुस्मरन् माम अनुस्मर युद्ध च। इसी प्रकार से गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कितना प्रोत्साहन दिया, लड़ाई में लग जाओ, वीर बन जाओ। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम्। अगर आप लड़ाई नहीं करेंगे, आपका उपहास होगा, आपका निंदा होगा, सब आपको, सब मजाक आपकी ऊपर करेंगे, उपहास करेंगे। इसलिए इससे बड़ा दुख क्या है? नहीं, हाँ, तो दुख धर्म नु किम नहीं, मरणाद अतिरिच्यते। नहीं, वो नहीं। मरणाद अतिरिच्यते शब्द का प्रयोग किया कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। आप कीर्ति प्राप्त किया आपके युद्ध का कला के वजह से, युद्ध का कला के हिसाब से अर्जुन सुप्रसिद्ध योद्धा। और अगर आप छोड़ेंगे युद्ध, डर के लोग बोलेंगे आप डरपोक है,
और आपका अपमान होगा, और ये मरण से भी ज्यादा दुखदायी है। पूरा गीता का उपदेश है युद्ध में लग जाओ। सुखिनः क्षत्रिय पार्थ ये लभन्ते युद्धमीदृशम स्वर्ग द्वार अपावृतम, ऐसे शब्द का प्रयोग है गीता में। तो भक्त शरणागति अलग अलग रूप में हम देखते हैं। भक्त ध्रुव भी युद्ध किया और उनके जीवन के अंत में वैकुंठ लोक से विमान आया उनको वैकुंठ में लेने के लिए। दूसरे अलग अलग भक्तों का प्रसिद्धि अलग अलग प्रवृत्ति के लिए हम शास्त्र में देखते हैं। और प्रभुपाद जी महाराज का प्रसिद्धि भक्ति का प्रचार, प्रेरणा प्राप्त किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से कि आप जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, और अंत में पूर्ण दुनिया के सभी प्रमुख भाषाओं में प्रचार हो रहा है, न केवल अंग्रेजी भाषा में, अरबी भाषा भी। हर महीना संकीर्तन समाचार हो, समाचार पत्र आप लोग मालूम नहीं कोई आपको दिखलाते हैं कि नहीं, पूरे दुनिया का स्पर्धा चलते हैं। प्रभुपाद जी महाराज के पुस्तकों का वितरण का स्पर्धा होते हैं, और विशेष वहां अरबी भाषा का पुस्तक का वितरण अरबिस्तान में नहीं हो रहा है। दुख की बात है, वहां अतिवादी ज्यादा है, इसलिए वहां साक्षात करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप और यूएसए में अरबी पैसा वाला बन गए ना, क्योंकि हमको सब गाड़ी में चलना है और वहां पेट्रोल तेल बहुत है, और वो लोग दुनिया भर आनंद के लिए भ्रमण करते हैं, और इस्कॉन भक्तों उनके हाथ पर प्रभुपाद जी का गीता और ईशोपनिषद इत्यादि पुस्तकों को बांट रहे हैं। काल समाप्त हो गया प्रभु। प्रभुपाद कितने प्रोत्साहन दिए पुस्तक वितरण के लिए, लेकिन इन्होंने एक ही प्रवृत्ति में सब कुछ नहीं बोला। क्योंकि जैसे यहां जब मंगल आरती के पश्चात इतना पुस्तक वितरण हुआ, इतना पुस्तक वितरण हुआ, मैं यहां कितना 3 हफ्ता हो गया, और उसके पश्चात रसोइया का नाम भी बोलते हैं। एक ही मंदिर में ये होते हैं, लेकिन योग्य भी है, क्योंकि प्रसाद के बिना पुस्तक वितरण नहीं होते हैं। जितने श्लोक इतने एक अध्याय आपके पास भी होना चाहिए। यथा वितरणस्य महिमा वर्तते तथा येन गीतायाः एकाध्यायः कंठस्थः कृतः, द्वितीय अध्याय कंठस्थ कृतः, 18 अध्याय जिसने कंठस्थ किए उनका नाम का उच्चारण भी यहाँ होगा। श्रीमद् भागवत के जितनी स्तुतियां हैं उन स्तुतियों को कंठस्थ किया। एवं जैसे भक्ति शास्त्री ने किया, भक्ति वैभव ने नामग्रहणम कर्तव्य। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति चारु महाराज की जय। हरे कृष्ण। His Grace बसुघोष प्रभु की, आचार्य संस्कृतानंद हरि प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for narrating wonderful pastime of Srila Prabhupada. Especially like you mentioned that how Srila Prabhupada wanted that the philosophy should be presented through dramas. And our Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, also wanted that this philosophy of Krishna consciousness must be presented through dramas, because by seeing the dramas people can learn the philosophy. If they will not read the books, just by seeing the dramas they will develop their appreciation and accept Krishna consciousness. So
considering all this, today evening we will be having very special drama. Haribo! And this drama is being directed by any guess? Who could be the director of this drama? Drama named? Who will distribute the fruits? Any guess who could be the director? Very famous director. So the drama is being directed by His Holiness Sri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. And this drama will be in this auditorium from 4:15 p.m. today sharp. So all the devotees are requested to kindly present at 4:15 p.m. for the drama festival. And now we are having with us His Holiness Kavichand Swami Maharaj. Haribo! So Maharaj will be sharing Srila Prabhupada Katha. And tomorrow is the 77th Vyas Puja celebration of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj. Haribo! And on this occasion, we are having Nagar Sankirtan at 6 a.m. So all the devotees are requested in the morning. You can participate in Sankirtan. Hare Krishna. माफ करो हिंदी नहीं जानता, so we have to have a translator, which is a difficult job, doing that all day long. Have to give a big haribol for the translator. I went to one, it was Sai Baba actually. They had simultaneous, but they had 3 translators. So if one, got stuck, another one would just take it. That way because it's very easy for a translator to not hear something. So, Om Gyana Timirandasya Gana Gana Shalakaya Chakshura Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rup Kadamayam Dadati Swa Padantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Tarani Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnave Vyo Namaha. Supposed to be Prabhupada Katha. I didn't have personal association very much. तो आज प्रभुपाद कथा होनी थी, किंतु मेरा कभी श्री प्रभुपाद से इतना व्यक्तिगत संपर्क नहीं रहा है. One time Tamal Krishna Maharaj introduced me to Prabhupada, and Prabhupada was very busy, and he just went, तो एक बार श्री प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज ने श्री प्रभुपाद से मेरी पहचान कराई, किंतु उस समय ज्यादा कुछ नहीं हुआ. He knew I was so puffed up or something he wanted to. But I was able to, fortunately Prabhupada gave his association freely to everyone, all of you also. तो श्रील प्रभुपाद अपनी संगति सबको बड़ी आसानी से दिया करते थे. Because he said, if you want to know me, read my books. श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि मुझे जानना चाहते हैं तो मेरी पुस्तकें पढ़ें. And then he provided so many books. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें इतनी सारी पुस्तकें प्रदान की हैं. And we can read what he went through just to get those, even those first 3 books, the first canto. और उस स्तर तक पहुंचने के लिए श्रील प्रभुपाद के भागवतम के प्रथम स्कंद को पढ़ने से हम समझ पाएंगे वे हमें क्या देना चाहते हैं. He was all alone, nobody helped him, but he somehow was translating. शुरुआत में श्रील प्रभुपाद की मदद कोई नहीं करता था, अकेले ही वे पुस्तकों का अनुवाद किया करते थे. But Prabhupada, he wasn't actually translating. किंतु प्रभुपाद सिर्फ पुस्तकों का अनुवाद ही नहीं करते थे. He was writing books. असल में वो पुस्तकों को लिख रहे थे. He was absorbing all the commentaries of all the
we saw all these books, commentaries of different acharyas. So Prabhupada would absorb the commentaries of all those acharyas and then write it perfectly for us. Not only for us, but for, he said, the next 10,000 years. So that's much different than just translating. तो श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों की समस्त टीकाओं को पढ़ के उनको अपने अंदर समेट के फिर हमारे लिए ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत करते थे ताकि हम उससे समझ सकें, अन्यथा पूर्ववर्ती आचार्यों के समस्त ग्रंथों को पढ़ने में हमारे कई वर्ष चले जाएंगे. He was giving us, all the previous acharyas, in a way we could understand it. It's miraculous. Now we see devotees from all over the world and all different backgrounds becoming Vaishnavas. श्रील प्रभुपाद ने पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को, उनकी अनुभूतियों को हमारे सामने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि सभी देश के सभी लोग इन पुस्तकों को पढ़ के वैष्णव बन रहे हैं. Just by associating with Prabhupada, mostly from the books. सिर्फ श्रील प्रभुपाद की संगति करके सभी लोग भक्त बन गए. So when he was in Delhi, well, he was in Vrindavan, but he would have to go to Delhi and he'd get a little money and buy some paper and hire someone to carry the paper to the printer, and they could just print a few books at a time. They didn't have these big machines that print 50,000 books in an hour, They had to and print a book. श्रील प्रभुपाद को पुस्तकें छपाने के लिए वृंदावन से दिल्ली जाना होता था, कागज खरीदना होता था, कागज खरीदने के बाद पुस्तकों को छपाना था, उसके बाद खुद ही उनका प्रूफ पढ़ना था और खुद ही पुस्तकों को बांटते थे. उस समय प्रभुपाद के पास अधिक धनराशि नहीं थी. We have enough trouble with the computer and fixing things, but every letter was one piece of metal, and you have to put it in back. You have to be able to read it backwards, so it prints forward. So it looks like a mirror image, and then they'd have to correct, and then they have to move everything, and he's having to do that, coming from Vrindavan, translating, printing a few more pages, and finding someone to donate. तो पहले के समय में पुस्तकें छापने के लिए पुरानी मशीन का प्रयोग किया जाता था, जिसमें पुस्तकें छापने के लिए पूरा टाइप सेट करना होता था. यदि एक जगह भूल हो जाए तो वापस से उस शब्द को ठीक करने के लिए पूरी लाइन को ठीक करना पड़ता था. आज के समय की तरह नहीं था कि कंप्यूटर हो और हम एक साथ कई हजारों पुस्तकें एक साथ छाप सकें. इसके अलावा श्रील प्रभुपाद सभी पुस्तकों को लिखते थे, उनका अनुवाद करते थे, और इतना सब करने के बाद उन्हें थोड़ी सी धनराशि किसी ने दान में दी थी. The printer said Prabhupada would come and he'd say, Swamiji, did you eat today yet? Prabhupada said no. The printer would force him to eat, because he was just absorbed in it. पुस्तकों के मुद्रक ने एक बार श्रील प्रभुपाद से प्रश्न किया कि स्वामी जी आप क्या खाते हैं, क्या आपने नाश्ता किया? प्रभुपाद ने कहा नहीं. तो उन्होंने स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था की, क्योंकि वे देख रहे थे कि बूढ़ा व्यक्ति आता है और बगैर कुछ खाए पिए काम में लगा रहते हैं. Has anybody been to the Chippewada temple in Delhi? Anybody here? In Chippewada, where Prabhupada had a room in Delhi. चिप्पीवाड़ा. अच्छा, क्या आप में से कोई दिल्ली के चिप्पीवाड़ा मंदिर में गया है, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद के कक्ष अभी भी मौजूद हैं? Has anybody been there? नई दिल्ली में चांदनी चौक के पास इस्कॉन का चिप्पीवाड़ा मंदिर. Go there. आपको वहाँ जाना चाहिए. It's near the big mosque, but the road going in is about this wide. अंदर जाने वाली सड़क इतनी सकड़ी and pretty far. और बहुत अंदर जाना पड़ता है. And it's a very beautiful deity there, Radha and Krishna. और वहाँ पे राधा कृष्ण के बड़े सुंदर विग्रह हैं. Prabhupada's room is upstairs, very tiny. और ऊपर श्रील प्रभुपाद के कक्ष भी बहुत छोटे से हैं. And in the floor of the room there's a dome. और प्रभुपाद the के deity is exactly underneath the dome. प्रभुपाद के कक्ष में मंदिर के ऊपर का विमान है, तो उस विमान को देख के हम समझ सकते हैं कि इसके ठीक नीचे भगवान के विग्रह स्थित हैं. And the devotee Delhi, they recently bought that place and they fixed it up now. और अब भक्तों ने वहाँ पे उस मंदिर की मरम्मत की है. That's where Prabhupada was translating and going out, trying to sell his back to Godhead. श्रील प्रभुपाद वहीं से पुस्तकों का अनुवाद करते थे, वहीं से भगवत दर्शन पत्रिका को वितरण करने के लिए बाहर जाया करते थे. And Birbahu Prabhu, he met a man on the bus in India one time, and he said he knew Prabhupada. He met Prabhupada. Yeah. तो मुझे एक बार एक बस में एक व्यक्ति मिला था जिसने बताया कि वो प्रभुपाद जी से मिल चुका है. He said when Prabhupada moved there,
many people in the area, they didn't want him to live there. श्रील प्रभुपाद जब वहाँ आया करते थे तो उस इलाके के अधिकांश लोग उन्हें वहाँ रहने नहीं देना चाहते थे। They thought this sadhu will pollute the youth. उन्हें लगता था ये साधु यहाँ पे क्या करने वाला है। There's a lot of Muslims live there, a lot of Christians. But this man convinced them, no, he's all right. You know. So Prabhupada was able to stay there. तो इस व्यक्ति ने लोगों को समझाया कि श्रील प्रभुपाद यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ रहने दिया जाए। When you have to walk to the printing place, walk to the paper market, so many things. तो प्रभुपाद को प्रिंटिंग पर जाना होता था, कागज खरीदना होता था और उसके बाद जाके पुस्तकों का मुद्रण स्वयं ही करवाना होता था। But he got those 3 volumes in the first canto. इसके बाद उन्हें प्रथम स्कंद के 3 खंड प्राप्त हो गए। And when he had that, people, you know, intelligent people could understand. So somehow he got to America. किसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद भागवत के उन 3 खंडों को साथ में लेकर अमेरिका गए। Before he was going around and preaching in India, showing people the books. तो इसके पहले श्रील प्रभुपाद भारत में प्रचार करते थे और अपनी पुस्तकें सभी को दिखाते थे। Is anybody old enough to remember O.P. Nair? आप में से ओपी नायर को कौन कौन जानता है? No. He was very famous. तो ये व्यक्ति उस समय बड़े प्रसिद्ध थे। He composed most of the Bollywood music. इन्होंने भगवत गीता के अधिकांश। He was also known as a drunkard and a womanizer. तो यद्यपि ये मद्यप थे और स्त्रियों के पीछे दौड़ा करते थे। So we met him. He became actually really nice in his old age. So he told me that Prabhupada came to his office. तो वास्तव में ये व्यक्ति बुढ़ापे में काफी सुधर चुके थे और ये मुझे मिले थे। इन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद उनके दफ्तर में आया करते थे। This was before Prabhupada went to America. ये प्रभुपाद के अमेरिका जाने के पहले की घटना है। So he was trying to preach to this man. तो श्रील प्रभुपाद उनको प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। And he was kind of like, what to do, you know. और इन्होंने कभी भी प्रचार में रुचि नहीं दिखाई। They said his friend, because his friend brought Prabhupada there, his friend said, donation, you know. और इनके मित्र वास्तव में प्रभुपाद को उनके पास लेकर आए थे तो उनके मित्र ने कहा कुछ दान दक्षिणा दीजिए। So if anybody's ever gone to these rich men, donation, okay, and he'll leave, you know. Give him money and he'll go away. तो उनको लगा ठीक है भाई ये पैसा लो और निकलो यहाँ से। So he gave 100 rupees. तो तब उन्होंने 100 रुपए का अनुदान दिया था। In 1960 something, you know, it was a lot of money. तो 1960 में 100 रुपए की अनुदान राशि बहुत बड़ी मानी Now जाती है। 100 rupees is, आज के समय में 100 even रुपए in का कोई India मोल you नहीं। can't do much with 100 rupees. भारत में 100 रुपए से आप कुछ भी नहीं कर In other सकते। countries. And so Prabhupada gave him a book. तो श्रील प्रभुपाद ने उन्हें एक पुस्तक प्रदान की। And he said, no, I don't need the book. उन्होंने कहा नहीं मैं पुस्तकें नहीं पढ़ता। Prabhupada gave it back. तो प्रभुपाद ने पुस्तक वापस ले ली। He said, that's all right, you can keep the book. तो प्रभुपाद ने कहा नहीं ठीक है आप पुस्तक रख सकते हैं। Prabhupada gave it back. जब पुस्तक वापस दी प्रभुपाद ने वापस पुस्तक उनको दी। After a couple times, Prabhupada gave the 100 rupees back. और कुछ देर ऐसा करने के बाद प्रभुपाद ने 100 रुपए वापस कर दिए। So then he thought, you know, Hindu is smart enough to know that's not good. So he took the book. बाद में उनको समझ में आया कि ये अच्छी बात नहीं है तो उन्होंने 100 रुपए के बदले में सभी पुस्तकें रख ली। And then, you know, I don't think he ever read it. I doubt that he ever read the book. But then many years later, the devotees were having Rath Yatra festival at near his house. He lived on the beach there in Bombay. तो मुंबई के उसी इलाके में रथ यात्रा हो रही थी। So he just saw this big festival. He said, let's go see what's going on. तो इस बड़े महोत्सव को देखने के लिए वो बाहर देखने आए कि क्या चल रहा है। So he went there and he was meeting devotees. तो वे वहां गए और उन्हें सब भक्तों से मुलाकात की। And I guess at that time, many devotees had recognized him. और उस समय वहां बहुत सारे भक्त थे। So he was asking, you know, what can I do? What should I do? तो वे प्रश्न कर रहे थे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। And they said, you should become life member. और भक्तों ने कहा आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं। He didn't like that. आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं तो उनको वो आइडिया पसंद नहीं आया। He said, you should put Hare Krishna in the music that you write. You should, when you make music, put Hare Krishna. तो उन्होंने कहा आप He जब didn't भी like that either. आप जब भी संगीत बनाते हो तो उसमें हरे कृष्ण डाल दीजिए। Then he met one very new devotee, maybe he was foreigner,
didn't know who he was. तो उसके बाद उन्हें एक विदेशी भक्त मिले, And this devotee he said, he took out his japa beads and he said, you should get some of these beads and you should chant. I've been chanting and it's just so wonderful and I just love it. You should do this. और उस भक्त ने उन्हें बताया कि आपको ये जप माला लेनी चाहिए, जप करना सीखना चाहिए, मैं जप कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको भी प्रयास करना चाहिए। He said, I like that. So he got some beads and he started chanting. तो उनको ये बड़ा पसंद आ गया, तो उनने जप माला खरीद ली और जप करना शुरू कर दिया। And he actually became favorable and he stopped drinking and eventually he even put Hare Krishna in some music. और इसके बाद उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी, भक्त बन गए और बड़े गंभीर हो गए। So we hear so much of Prabhupada, it's hard to keep up. It just gets bigger and bigger all the time because there's more and more devotees, and every devotee just shows something of Prabhupada's potencies. तो Every devotee. सभी भक्त जिस प्रकार से भक्त बने हैं, ये देख के हमें श्रील प्रभुपाद की विशिष्ट शक्ति के बारे में अनुभव होता है। So all these temples coming up and all these disciples, grand disciples, everybody building temples, is Prabhupada's potency just spreading. तो ये श्रील प्रभुपाद की शक्ति कोई साधारण नहीं है, इतने सारे भक्त बन रहे हैं, इतने भक्त, उनके शिष्य, उनके प्रशिष्य, इतने बड़े बड़े मंदिर, तो इससे श्रील प्रभुपाद की शक्ति का विस्तार हो रहा है। Another way to really know Prabhupada is to listen to the morning walks. श्रील प्रभुपाद को जानने की एक बहुत अच्छी You पद्धति really है। want to know. The morning walks are different than every other time. यदि हम सवेरे के भ्रमण के प्रवचनों को सुने, क्योंकि अलग अलग समय में उन्होंने अलग अलग बातें की हैं। Usually he was, in the beginning every devotee went, but later few devotees. Not so many went on the walk. शुरुआत में सभी भक्त लोग सवेरे के सैर पे जाया करते थे, किंतु बाद में सभी को जाने का अवसर नहीं मिलता था। And they would have very casual talks, and devotees would be telling Prabhupada what everybody's up to in the world, and Prabhupada would listen and he would joke around. And इस मौके पे श्रील प्रभुपाद अनौपचारिक वार्ता करते थे, भक्त लोग प्रभुपाद से कहते थे, प्रभुपाद ऐसा हुआ, मैंने उसको ऐसा कहा, और प्रभुपाद उसके ऊपर कुछ न कुछ टिप्पणी दिया करते थे। I went on a few, and मैं कुछ सवेरे के भ्रमण में मैं भी साथ था। one in particular I remember. ये कहाँ पे हुआ था मुझे वृंदावन। याद नहीं है, शायद वृंदावन में रहा होगा। Came out from the temple. Temple would not even open, and it was a big mess all around. और उस समय मंदिर का शिलान्यास होने वाला था और बहुत बड़ा समारोह था। And I actually was for a few days, and they had built in front of the temple. They thought they'd have some shops, for devotees. So they built these little. तो मंदिर के सामने कुछ दुकानों का निर्माण किया गया Kind था। that fold out. You used to see in India, you just fold up the thing in the morning. ओह अच्छा, तो ये दुकानें जो थी, इनका दरवाजा सामने से खुलता था और ठीक सामने इस तरह से झूल के बंद होता था। So of course some people moved in there. तो वहां पे कुछ लोग आने लगे। So every morning Prabhupada tell the temple president, get them out. और उन दुकानों में रहने लगे। तो प्रभुपाद रोज सवेरे बताया करते थे, इनको यहाँ से बाहर निकालो। So one morning Prabhupada, why aren't they out? I told you to get them out. एक सवेरे प्रभुपाद बड़े क्रोधित हो गए और बोला था, मैंने पहले तुमसे I कहा था can't इनको बाहर really निकालो। imitate how, but and the temple president said, oh, I told so and so to do it. और मंदिर अध्यक्ष ने कहा, ओ मैंने उनसे बोला था उनको बाहर निकाल दो। And you've heard Shri Prabhupada said, I told you to do it. Who do you think you are? And he's screaming and yelling at the guy and saying, you stupid fool, how can I make a temple with you? And प्रभुपाद ने बोला, मैंने तुमसे बाहर निकालने को कहा था, तुमने दूसरे से क्यों कहा? तुम अपने आप को क्या समझते हो? उल्लू I के was पट्टे। trying to hide, but there's no place to hide. It's going to come after me. And then he started walking. और तब प्रभुपाद फिर से टहलने लगे। This just shows, and it was early morning. और ये सवेरे का समय था। So he looked up at the moon. तो श्रील प्रभुपाद ने ऊपर चंद्रमा की ओर देखा। And Tamal Krishna Maharaj is right next to him. He said, do you want to hear my theory about the moon? उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से बोला, क्या तुम चंद्रमा के बारे में मेरा वक्तव्य सुनना चाहते हो? And yeah. So Prabhupada said the moon is actually hot fire, but there's cold atmosphere, so the moonlight is cooling. चंद्रमा में वास्तव में अग्नि है, किंतु चंद्रमा से निकलने वाली किरणें हैं, ये शीतल करती हैं। Then he was laughing and he said, what would a scientist think about that?
और फिर प्रभुपाद हंसने लगे, कहने लगे कि बड़े बड़े वैज्ञानिक को ये बात समझ में नहीं आती. And so he started saying, well, they say it's reflecting and all these. Tamal Krishna was explaining what the scientists say. और इसके बाद तमाल कृष्ण महाराज कहने लगे कि वैज्ञानिकों का इसके ऊपर क्या मत है. So it's glowing because it's reflecting. तो ये ठंडा है क्योंकि ये परावर्तित करता है. So Prabhupada, there was a dirt road then. You know, the Bhaktivedanta Marg was a dirt road. तो श्रील प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी मार्ग पे चल रहे थे. Prabhupada said, why isn't this glowing? प्रभुपाद कहते हैं ये क्यों नहीं चमक रहा है. Sun shines on it. इसके ऊपर भी तो सूर्य की रोशनी पड़ रही है. And then he gave some other explanation. I don't know what. और इसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कुछ बताया. I don't know. It went on for a while. Then Prabhupada looked at Tamal Krishna Maharaj and said, why aren't you glowing? श्रील प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज की ओर देखा और कहा कि तुम क्यों नहीं चमक रहे. And then he laughed. He was just laughing, like he completely forgot this whole chastisement thing. और इसके बाद ये जोर से हंसने लगे. इसके पहले जो डांट लगाई थी सब भूल गए. And I asked Dhananjaya Prabhu, he was a victim. I said, do you remember that? और धनंजय प्रभु वहां पे थे. मैंने उनसे पूछा कि आपको वो स्मरण है. He said, oh yes, many times. तो उन्होंने कहा हाँ बहुत बार याद आता है. There was different relationships Prabhupada had. Some devotees, he never, you know, always just completely nice. Sometimes he always chastising. तो श्रील प्रभुपाद का अलग अलग भक्तों Back and से forth. अलग अलग संबंध था. किसी किसी को डांटते थे, किसी के साथ हंसते थे. Like our Giriraj Swami had a very, like a young son or something. Grandson practically. जैसे गिरिराज महाराज का प्रभुपाद के साथ नाती पोते का संपर्क था. And he saw one time, he told me it was Gargamuni Prabhu and Tamal Krishna Maharaj. And they were arguing with Prabhupada. और एक बार उन्होंने देखा कि गर्गमुनि प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज जी श्रील Prabhupada was प्रभुपाद के arguing with साथ them. बहुत बहस कर रहे थे. प्रभुपाद भी उनके साथ बड़ी बहस कर रहे थे. And he was thinking, I never want to do that. और उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरह श्रील प्रभुपाद से कभी बहस नहीं कर सकता. And then he said he was watching Prabhupada. He really liked Prabhupada, loved it. He had fun. Like Krishna fights with Hiranyakasipu or something. He enjoyed the arguing. और जब उन्होंने श्रील प्रभुपाद को देखा तो उन्होंने देखा श्रील प्रभुपाद इस बहस का बड़ा आनंद उठा रहे थे. All so many different relationships. So the morning walks were always something like that, you know. तो इस सवेरे की सैर में इस तरह होता था. अलग अलग भक्तों के साथ श्रील प्रभुपाद का अलग अलग संबंध था. जैसे कृष्ण कभी कभी असुरों के साथ लड़ना पसंद करते हैं. Another time in Vrindavan, there was some sadhu walking along, एक बार वृंदावन में कोई साधु श्रील प्रभुपाद के साथ चल रहे थे. and he was talking some Mayavadi stuff. You know. और वे मायावाद के ऊपर ही चर्चा कर रहे थे. So there was a big tree, and Prabhupada said, "You see that tree?" तो एक बहुत बड़ा वृक्ष सामने आया. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप उस वृक्ष को देख सकते हैं. This guy must have been saying this, you know, Madhava Seva, Manava Seva, Madhava Seva. और ये जो दर्शन कह रहे थे ये था मानव सेवा ही माधव सेवा है. Serve man, you serve God. आदमी की मनुष्य की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है. Prabhupada said, he said, yeah, I see the tree. तो उन्होंने कहा हाँ मैं इस वृक्ष को देख पा रहा हूँ. Prabhupada said, could you water every leaf on that tree? श्रील प्रभुपाद कहते हैं क्या इसकी हर पत्ती को तुम जल दे सकते हो? And he said, no. उन्होंने कहा नहीं. Prabhupada laughed. He said, even if you did, it wouldn't help the tree. It won't? Even if you could water every leaf, it's not going to help the tree. यदि आप हर पत्ते में पानी सींच भी देते तो भी इससे वृक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती. You have to water the root. आपको जड़ में पानी देना होगा. So you have to serve Krishna. Then you आपको can कृष्ण help की सेवा करनी everyone. होगी. इससे सभी की सेवा हो Then जाएगी. you can feed the whole tree. If you serve Krishna, you can help everyone in the world. यदि आप कृष्ण की सेवा करें तो आप दुनिया में सभी की सहायता कर सकते हैं. He said, you have Gandhi disease. Gandhi disease, he said. ओ तुम्हें गांधी की बीमारी हो चुकी है. We'll cure you. He laughed again. Many in the morning walks here, many laughing. Prabhupada was very happy, you know. श्रील प्रभुपाद सवेरे की सैर पे बड़े खुश रहा करते थे और कई बार हंसा करते थे. And one time in Los Angeles, on the beach, एक बार लॉस एंजलिस में समुद्र के किनारे different things. One time he saw one guy who was sleeping on the beach, एक बार उन्होंने देखा एक व्यक्ति समुद्र किनारे सो रहा है and he's just getting up. और वो अभी सो के उठा है. And you know, they have no home, they don't care about anything. They're just उसका कोई living. घर नहीं है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है. Prabhupada said, look at him. तो बात कहते हैं देखो उसकी ओर. He's given up everything उसने सब कुछ छोड़ दिया है except drugs and sex.
केवल नशा पकड़ के रखा है और मैथुन करता है. But in America, they have these guys, they call wino. अमेरिका में विशिष्ट प्रकार के लोग हैं, इनको कहते हैं वाइनो. They can't eat. Like sometimes we go for Food for Life. If they eat, just they only wine. ये खाना नहीं खा सकते हैं, भोजन करने जाते हैं तो उल्टी हो जाती है, सिर्फ शराब पीते हैं. So their brain gets pretty messed up, you know. तो इनका दिमाग खराब हो जाता है. And they just go and where there's people and say, give me some money, I'll get wine. ये जाके लोगों से भिक्षा मांगते हैं, पैसा दो मैं दारू पीऊंगा. And you can get really cheap wine, so they just ask for you. बहुत सस्ती दारू मिलती है, थोड़ा पैसा दीजिए मैं And शराब people पीऊंगा. give them. और लोग इनको पैसा देते हैं और ये शराब पीते हैं. So Prabhupada in one class, तो श्रील प्रभुपाद एक बार Morning कक्षा class. में कहते हैं, he said, Rasoham up sukhenteya, the रसोहम taste अपनो of कौन है? liquid. I am the taste of liquid. किसी भी पदार्थ का, जलीय पदार्थ का स्वाद मैं हूँ. He said, even his wino, if every time he drinks the wine, he would think this is Krishna, he'd become a great devotee. तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तक Great कहते stuff. हैं कि यदि कोई शराबी शराब पीते समय ये सोचे कि ये शराब का स्वाद कृष्ण है, तो ऐसा सोचते सोचते वो कृष्ण का महान भक्त बन जाएगा. But it would take a long time. किंतु ऐसा करने में बहुत लंबा समय लगेगा. And he's not going to do that, But he said, we should be like that. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें उसी तरह होना चाहिए. Like he is for the wine, we should be like that for Krishna, for chanting. जैसे व्यक्ति शराब के लिए लालायित होता है, वैसे हमें He's कृष्ण के begging लिए all the time, please let me लालायित chant. होना चाहिए. ओ मुझे स्वाद, Krishna, don't let me chant, let me not forget. मुझे कृपा दीजिए That's ताकि how मैं we जप कर should be. सकूं. Then we can be successful. तब हम जाके सफल हो पाएंगे. तो हमें सबसे भिक्षा याचना करनी होगी. Another time we were walking and it was somewhere in Los Angeles. तो समर में, गर्मियों Probably के on the समय में beach. लॉस एंजलिस की सवेरे की यात्रा है. And there was a big pile of बिग stool. ओह, तो वहां पे मलमूत्र And- पड़ा हुआ था. Karandar, he was walking right next to Prabhupada. और करंदर श्रील प्रभुपाद के बाजू में चल रहे So थे he was looking at Prabhupada. और ये प्रभुपाद की ओर देख रहे थे. It was right in front of him. Prabhupada said, stop. और जैसे ही सामने वो मलमूत्र आए, प्रभुपाद ने कहा रुको. And they saw this and Prabhupada said, dog or man? प्रभुपाद देख के बोले कुत्ता है या आदमी है. And they said, well, I think dog. And Prabhupada, because the people that sleep on the beach, that's what they do, So another time, he was walking and there was a little hill going down. एक बार श्रील प्रभुपाद एक पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे. And so Bhavananda, he held out his arm to help Prabhupada go down the hill. और श्री भवानंद महाराज ने उनको पकड़ के रखा था. And at the bottom, Prabhupada just pushed him like really hard. He went off. और प्रभुपाद ने उनको He was धक्का दे really दिया और वो जाकर surprised. नीचे गिरे. And Prabhupada said, that is Mayavadi. प्रभुपाद कहते हैं ये है मायावाद. They think they take shelter of the Guru, but then they think I'm God now and they throw the Guru out. ये पहले गुरु की शरण लेते हैं, बाद में सोचते हैं मैं भगवान बन गया और ये गुरु को धक्का मार Giving देते us हैं. understanding, तो समझाने के लिए Anyway, कितना I- बढ़िया उदाहरण दिया प्रभु. So many morning walks are recorded, and Prabhupada liked to have them recorded. और प्रभुपाद को सवेरे की सैर पे जाके शिक्षा देना बहुत पसंद आता था. There's one where, in the early time, tape recorders were really big, और पहले के समय में टेप रिकॉर्डर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, like 10 kilos, 10-12 किलो के होते थे. and devotee was carrying it. और भक्त उनको उठा के चला करते थे. And Prabhupada said, "Is that heavy?" He said, "No, it's all right. It's all right." प्रभुपाद कहते थे भारी है, वो कहते थे नहीं हल्का है, उठा रखता हूँ. And he said, "Yeah, if I had any good memory, we wouldn't need this thing." But Prabhupada, he said, "Yeah, that's Kali Yuga. We can't remember anything. We have to record everything." तो हमारे इसमें कोई मेमोरी है कि नहीं, श्री प्रभुपाद ने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, बहुत सारी मेमोरी बाकी है. Prabhupada would remember everything and everyone he met, and प्रभुपाद को सब कुछ याद रहता था. so we're very fortunate that he did go to all that trouble to write, not only to write the books, but to
organized an entire society for studying and distributing the books. तो श्रील प्रभुपाद ने न सिर्फ पुस्तकों को लिखा बल्कि पूरे समाज को, हमारे संस्था को इस तरह बनाया कि हम लोग पुस्तकों का न सिर्फ मुद्रण करते हैं बल्कि बांटते भी हैं, बल्कि उनका अध्ययन भी करते हैं. And inspire people all over the world, not only America, but to translate and distribute the books, and now they're in so many languages. और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के नौजवानों को इतना प्रोत्साहित किया जिन्होंने पूरी दुनिया भर में पुस्तकों का अनुवाद करके उसका वितरण किया. So we all have to take up that work and continue to spread it. तो हमें इस कार्य को, इसका More and उत्तरदायित्व more. लेना होगा और पूरी दुनिया में इसका प्रचार करते रहना होगा. And Prabhupada is inspired. If you read about it, you just read Prabhupada's biographies. प्रभुपाद लीलामृत को पढ़िए, उससे प्रोत्साहन दीजिए. We love to hear them, these festivals and just hear. I see Shri Kirti Prabhu, most of what he tells many times. मैंने देखा है शुद्ध कीर्ति प्रभु जो बताते हैं, उन्होंने कई बार ये सब बातें बताई हैं. More detail, but he becomes more and more blissful to tell them. किंतु हर बार वही बात सुन के इतना मजा आता है और वो खुद इतने प्रसन्न हो जाते हैं उसी बात को दोहरा दोहरा के. Because Prabhupada made such an impression on people. तो श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के ऊपर ऐसा इंप्रेशन डाला है. If you read ऐसा Shama प्रभाव डाला है. Sundar Prabhu's books, Chasing Rhinos, आपने श्याम सुंदर प्रभु की पुस्तक पढ़ी होगी, चेजिंग द राइनोस. everybody was asking him for many years, right? कई लोग उनसे बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि आप पुस्तक लिखिए. Because he was there in the very beginning, and then he also traveled with Prabhupada. क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद के साथ Very एकदम intense. शुरुआत से थे और उन्होंने कम से कम 10 साल श्रील प्रभुपाद के साथ दुनिया भर में भ्रमण किया. When Prabhupada was starting many temples and going to Russia and all. जब प्रभुपाद ने कई मंदिरों की स्थापना की, जब वे दर्शन पे जा रहे थे तब, And he had kind of gone away from Krishna conscious practices. और ये कुछ समय के लिए कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से दूर हो गए थे. But he was actually studying. He was reading many books to study writing. तो इन्होंने कई पुस्तकों को पढ़ा और उसके बाद इस पुस्तक का संकलन किया. And then he told me, I thought I could do in 2 months. और पहले मुझे लगा था, No प्रभु का problem. कहना है कि मुझे लगा था कि मैं 2 महीने के अंदर ये पुस्तक लिख दूंगा. But then he started writing, and then he started remembering more and more and more things. किंतु जब वे लिखने लगे तो उनको और अधिक चीजें याद आने लगी. And then when nowadays, you remember something, you could look up that day on the internet and find out everything Prabhupada said and did. So it took him 2 or 3 years. तो आजकल हमें कुछ लिखना होता है तो हम पुस्तक देखते हैं, वेदावेश देखते हैं, लेकिन उन्हें जब पुस्तक लिखने लगे तो उन्हें 2-3 साल का समय लग गया. But if you know English, they're available as such wonderful books. ये इतनी अद्भुत पुस्तक है. That's another way to really know Prabhupada. तो इस प्रकार से आप प्रभुपाद के बारे में जान सकते हैं. A few devotees had that very intimate association. केवल कुछ ही भक्तों को इतनी अंतरंग संगति प्राप्त हुई है. But we were always told books are better than I am, क्योंकि हमें हमेशा ये सिखाया गया था कि पुस्तकें मुझसे बेहतर है and separation is the highest. और विरह में सेवा करना और अच्छा है. So be happy, You're separate. You don't get to be with Prabhupada, but separation is higher. तो आपको प्रभुपाद के साथ रहने का अवसर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, विरह में रहना और अच्छा है. So you all have this opportunity. You have the books. You have all these memories. You have so many devotees, and the whole movement is just Prabhupada's power. All these temples everywhere. तो अभी हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतनी पुस्तक हैं, श्रील प्रभुपाद के बारे में बताती हैं और श्रील प्रभुपाद के बनाए गए इतने सारे मंदिर हैं, तो उनकी शक्ति का विस्तार हो रहा है. People are buying Bhagavatam sets all over the place. हम सबके पास भागवतम है. You saw a picture that some girl just at a university campus in America. She bought the Bhagavatam set. She's walking away with it. और मैंने देखा है यूनिवर्सिटी कैंपस में एक Carrying लड़की this big box. हाथ में इतने बड़े भागवतम के बक्से लेके जा रही थी. Oh, they're so happy. मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा. So, something's happening, but Prabhupada started with absolutely nothing. श्रील प्रभुपाद ने जब शुरू किया था तो कुछ भी नहीं था, अब देखिए कितना बड़ा हो चुका है. He had the 40 rupees, or you could call it $5 or $7. 40 रुपए थे जो कि अमेरिका में $60 के बराबर थे. At that time, rupee was 4 rupees, $1. उस समय $1 $4, $1 में 4 रुपए मिलते थे. Now it's 80. Right? आजकल तो 80 रुपए मिलते हैं. So when we hear those numbers, we don't realize he had a few dollars because he sold some books to the captain of the ship.
उनके पास कुछ डॉलर थे जो कि उन्होंने शिप के कप्तान को बिक्री करने के बाद They never worried about the money, never worried about anything. श्रील प्रभुपाद ने कभी भी पैसे की चिंता नहीं की, किसी बात की चिंता नहीं की, He just did it. उन्होंने बस कर दिखाया. They only worried about how to distribute the books, how to get more books published, printed, typed. उन्होंने पुस्तकों को छापा भी, मुद्रण भी किया, वितरण भी किया. And all, not a young man and very bad health. ये कोई नौजवान नहीं थे, इनकी तबीयत भी खराब थी. We all 2 heart attacks on the ship. He had another either stroke or heart attack early on in America, a couple times. और जहाज में आते समय ने 2 बार हृदयाघात हुआ, और अमेरिका में आने के बाद भी इनके पास कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं थी, तो तब भी He was हृदयाघात हुआ था. empowered. He's not just another sadhu or another guru. He's an ये कोई साधारण साधु या साधारण से गुरु नहीं थे. acharya with big letters. ये आचार्य थे. Acharya with small letters and with one big letter and then all big letters. ये आचार्य का पहला अ बहुत बड़ा था. There are many acharyas. They're teachers. They can initiate disciples. But to be a sampradaya acharya is कई आचार्यों ने दीक्षा दी है, शिष्य बनाए, such an किंतु important person. संप्रदाय आचार्य होने के लिए विशेष शक्ति चाहिए. To be a world leader. कई लोगों के गुरु बने. So it's still going on, and there's plenty of places still to preach, even in India where nobody knows Krishna. तो अभी भी उनका प्रचार चल रहा है. So I think time is up. It's almost 1 o'clock. That clock's not running. How is it running? We started at 12:15. 12:45. Now it says 12:55. So what time is it really? 12:15. Huh? It's time. Huh? It's time. 1 o'clock. Time, right? Time to stop. Yeah. Strange. All right. All glories to Srila Prabhupada. Thank you all for coming and taking part in this wonderful festival and doing all the garland, so much endeavor, so many devotees are so service attitude, Prabhupada said over and over again. Just by service attitude, you get everything. केवल सेवा भाव से सब कुछ शुरू होता है. श्रील प्रभुपाद कहते हैं सेवा भाव से इतना बड़ा हुआ है. You don't have to do big spectacular things. आपको बड़े बड़े काम करके दिखाने की जरूरत नहीं, केवल मन में सेवा भाव होना चाहिए. Srila Prabhupada ki जय. Gaur Premanandi Hari Hari. हरि हरि बोल. And Bhakti Charu Swami Maharaj ki jai. जय. Because he manifested Prabhupada's potency very wonderfully. Jai. His Holiness Kavichandra Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for such an inspiring talk. You mentioned that how Srila Prabhupada was not just translating the books, but he was writing the books, just absorbing the commentaries from different acharyas, and he was giving the books for upcoming 10,000 years. And you shared stories from morning walks. So thank you, Maharaj, for this wonderful session. So we thank Maharaj by one time chanting Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this is the end of our morning session. We will be assembling in the evening at 4 o'clock sharp here at auditorium. There will be a youth class given by His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj. Hari Bol. And continuing to that, 4:20 there will be a drama performance led by His Holiness Shri Krishna Chaitanya Swami Maharaj, and there will be the lead role will be His Grace Udayananda Prabhu. Hari Bol. हरि बोल. शाम को 4:20 पे यहाँ पे एक नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है हिज ग्रेस उदयानंद प्रभु ने. हरि बोल. और उसके बाद after that in the evening from 5 o'clock we will be hearing from senior devotees. We will be continuing Prabhupada Katha by His Holiness Prabhupada Saraswati Maharaj,
His Grace Shrutakirti Prabhu, His Holiness Bhanu Swami Maharaj, and His Holiness Jai Advait Swami Maharaj. So we will meeting at 4 o'clock sharp. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Prabhupada Memorial Festival ki. Gaur Premanande. Hari Hari Bol.